इंडस्ट्रियल ड्राइव्स एंड कंट्रोल, बराबर। એમાં આપણે जनरली हम लोग बेसिक कन्वर्टर सीखेंगे। तो 4 टाइप्स के कन्वर्टर्स हम लोग देखेंगे। एनालॉग टू डिजिटल रेक्टिफायर, जो हम लोगों ने पहले देखा था। અહીંયા કોઈ એવું છે જેને ગુજરાતીમાં વાંધો છે? જેવું દેખાય છે કોઈ? તો ગુજરાતીમાં બોલીએ ચલો। તો એક તો એસી ટુ ડીસી રેક્ટિફાયર, પછી ડીસી ટુ એસી ઇન્વર્ટર। ડીસી ટુ એસી ઇન્વર્ટર કેમ કહેવાય? કેમ કે આપણે એવું ગણીએ કે એસી ટુ ડીસી જ્યારે કરીએ છીએ તો એ પોઝિટિવ નેગેટિવ સાયકલ છે, એને રેક્ટિફાય કરીને આપણે ડીસીમાં આઉટપુટ ખાલી પોઝિટિવ લઈ આવીએ છીએ। તો આપણે રેક્ટિફાય કરીએ છીએ ને એને એઝ અ ફોરવર્ડ મોશન ગણીએ છીએ। તો એનું રિવર્સ કરીએ છીએ આપણે ડીસી ટુ એસી કરીને, એમાં નેગેટિવ કમ્પોનન્ટ પણ એડ કરીએ છીએ, એટલે એને ઇન્વર્ઝન અને ઇન્વર્ટર નામ પડ્યું છે। ડીસી ટુ એસી ઇઝ એન ઇન્વર્ટર। ડીસી ટુ ડીસી ઇઝ અ ચોપર સર્કિટ, એટલે સ્ટેપ ડાઉન કરવું હોય કે સ્ટેપ અપ કરવું હોય, that is chopper circuit. DC to DC. AC to AC is the cyclo converter. Fixed frequency, fixed voltage to variable frequency, variable voltage. 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट થી 50 હર્ટ્ઝ 200 વોલ્ટ કે 50 હર્ટ્ઝ 230 વોલ્ટ થી 60 હર્ટ્ઝ 230 વોલ્ટ। તો હવે આપણે ઇન્વર્ટરમાં જોઈશું, કેમ કે હમણાં મેઇન આપણું સ્ટાર્ટિંગ છે ઇન્વર્ટરથી। તો ઇન્વર્ટર અને ઓસિલેટરમાં શું ફેર છે? આપણે ઓસિલેટર પહેલા વાપરેલો। ઇન્વર્ટર ક્યારે વપરાય? બંનેનું વસ્તુ સેમ છે। ઓસિલેટરનું આઉટપુટ આપણને પીડબ્લ્યુએમ માં મળે છે, પ્લસ માઇનસ માં જ મળે છે, એટલે એનાલોગ જેવું મળી જાય છે ડીસી થી। પણ એમાં જે આઉટપુટ હોય છે એ લો હોય છે, એટલે એનું પાવર રેટિંગ લો હોય છે। ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લોડ નથી ચલાવી શકતો ઓસિલેટર। અને ઓસિલેટરની જે ફ્રીક્વન્સી હોય છે આઉટપુટની બહુ હાઈ હોય છે, અબાઉ કિલોહર્ટ્ઝ। ઇન્વર્ટરમાં આઉટપુટ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ઇન હર્ટ્ઝ અને પાવર સર્કિટ્સ ઇટ કેન રન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લોડ, એટલે આઉટપુટમાં કરંટ પાવર રેટિંગ વધારે આપી શકે ઇન્વર્ટર। आज આપણે ડિફરન્સીસ હતા નીચે લખ્યા છે કે આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઇન્વર્ટરમાં સપ્લાય પાવર જેટલું જ મળશે અને મેક્સિમમ 1000 વોલ્ટ સુધી જાય છે। ઓસિલેટરમાં આઉટપુટ કેપેસિટી ઇઝ અરાઉન્ડ મિલીવોલ્ટ, ફ્રીક્વન્સી એ હર્ટ્ઝ અને કિલોહર્ટ્ઝ અને હાયર। ઇન્વર્ટરમાં હર્ટ્ઝ, ઓસિલેટરમાં કિલોહર્ટ્ઝ અને હાયર। સર્કિટ ટાઈપ, ઇન્વર્ટર ઇઝ અ પાવર સર્કિટ, ઓસિલેટર કેનોટ રન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લોડ। એમાં લોઅર એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ્સ લગાડીએ 5 વોલ્ટ 1 એમ્પિયર કે એના કરતા ઓછો કરંટ જતો હોય એવું બધું। હવે ઇન્વર્ટર ક્લાસિફિકેશન, तो there are various types of classification, right? So first is based on configuration, मतलब सर्किट स्कीमेटिक में कैसे दिख रही है। तो सीरीज मींस क्या? तो તમારા કમ્પ્યુટેટિંગ કમ્પોનન્ટ જે છે એ તમારા એસસીઆર સાથે જો સિરીઝમાં છે then it is a series configuration. કમ્પ્યુટેટિંગ કમ્પોનન્ટ્સ પેરેલલમાં છે તો છે પેરેલલ કન્ફિગરેશન। હાફ બ્રિજ અને ફૂલ બ્રિજ, હાફ બ્રિજ ઇઝ अर्धूज कन्वर्ट થશે, नेगेटिव साइकिल नहीं मिलेगी। फुल ब्रिज में पूरा डीसी टू एसी हो जाएगा। दिस वाज वन टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बोल बोल। लोड तो सीरीज में जो है नहीं यार, કેવી વાત કરે છે? બે ફરીથી બોલ। હા હા ઓકે, કઈ વાંધો નહીં। જો હું તને એટલું કહું, કોઈ બી આપણે સર્કિટ જોઈએ, 1 મિનિટ હું નીચે લઈ લઉં સ્ક્રીન। આ રહી સર્કિટ, આ સિરીઝ ઇન્વર્ટરની। તો ક્યારેય તમે જોશો કરંટ જો લોડમાંથી ફ્લો થાય છે તો એ એસસીઆર માંથી તો ફ્લો થવાનો જ છે ને। તો એસસીઆર તો લોડના સિરીઝમાં જ રહેશે, કોઈ બી સર્કિટ લઈ લો। ઓકે, કોઈ બી લે ભાઈ, કરંટ તારા એસસીઆર થ્રુ જશે કે નહીં? કરંટ જશે ક્યાંથી તું મને કહે? આ રહ્યું, આ રહ્યું। હા બોલ। આ એસસીઆર ના પેરેલલમાં થયું? સિરીઝમાં થયું ને એસસીઆર, ટેન્શન નહીં લેતું। તારા કમ્પ્યુટેટિંગ કમ્પોનન્ટ કેવી રીતે લગાડ્યા છે એનાથી ફરક પડે। ઓકે, સિરીઝમાં કમ્પ્યુટેટિંગ કમ્પોનન્ટની રેટિંગ વધારે પડે કે સિરીઝમાં કરંટ એટલો જવો પડે, એ બધું આવશે આગળ। ઓકે,
તો ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન વોઝ સિરીઝ, પેરેલલ, હાફ બ્રિજ, ફૂલ બ્રિજ. પછી આવ્યું કમ્યુટેશન નું ક્લાસિફિકેશન. એટલે એસસીઆર ને આપણે સ્ટોપ કેવી રીતે કરીએ છીએ, એ કેવી રીતે કરીએ છીએ એનું ક્લાસિફિકેશન, એ હિસાબથી આપણે ક્લાસિફાય કરીશું. રાઈટ. તો પહેલું છે લાઇન કમ્યુટેશન. રાઈટ. લાઇન કમ્યુટેશન એટલે શું? મેં ભાઈ કોઈ એક્સટર્નલ સર્કિટ નથી લગાડી, મારો જે લોડ છે ને સિરીઝમાં એના લીધે જ મારું કમ્યુટેશન થઈ જાય છે. કાં તો એસી સપ્લાય, સોરી લોડ નહીં, એસી સપ્લાયના લીધે જ કમ્યુટેશન થઈ જાય છે. એટલે મેં બીજો એક એસી સપ્લાય જનરેટ કર્યો છે જેનો જ્યારે ક્રોસઓવર થઈ જાય છે ત્યારે મારો પહેલો એસસીઆર બંધ થઈ જાય છે. લોડમાં ઇન્ડક્ટિવ લોડ છે તો ઇન્ડક્ટિવ લોડના લીધે ક્યારેક કમ્યુટેટ થઈ જાય છે. અને ફોર્સ કમ્યુટેશન ઇઝ કોઈ બી એક્સટર્નલ સર્કિટ હું લગાડું તો ધેટ ઇઝ ફોર્સ કમ્યુટેશન. બધા આપણા એબીસીડી આપણે એક્સટર્નલ વધારે કમ્પોનન્ટ લગાડીએ જેને લીધે ખાલી કમ્યુટેટ થાય, ધેટ ઇઝ ફોર્સ કમ્યુટેશન. લાઇનમાં બીજો એક એસી સપ્લાય છે એના લીધે કમ્યુટેટ થઈ જાય છે. પછી છે વોલ્ટેજ સોર્સ ઇન્વર્ટર અને કરંટ સોર્સ ઇન્વર્ટર. તો એમાં આપણે સપ્લાય કયો યુઝ કરીએ છીએ ધેટ ઇઝ ટુ બી અન્ડરસ્ટુડ. સપ્લાય આપણે વોલ્ટેજ કોન્સ્ટન્ટ સપ્લાય, એવો સપ્લાય લઈએ જો કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ આપશે તો પછી વોલ્ટેજ સોર્સ ઇન્વર્ટર, અને એવો સપ્લાય લઈએ જો કોન્સ્ટન્ટ કરંટ આપશે તો કરંટ સોર્સ ઇન્વર્ટર. પછી બેઝ ઓન કન્ડક્શન એંગલ, એટલે જે પણ એસસીઆર લગાડ્યા છે એમાં આલ્ફા શું હશે? આલ્ફા જો 120 હશે બધાનો તો 120 ડિગ્રી કન્ડક્શન, 180 હશે તો 180 डिग्री कंडक्शन. किसी को गुजराती ना समझ में आ रही हो तो कमेंट में लिख देना. हाँ भाई धीमे बोलीस थोड़ું. तो दिस वाज बेस्ड ऑन कंडक्शन एंगल. હવે છે એપ્લિકેશન ઇન્વર્ટર, તો जनरली पता होती है सबको. वेरिएबल ड्राइव्स, वेरिएबल स्पीड, एसी मोटर्स, यूपीएस, ऑटोमोबाइल्स. मतलब कहीं पे भी तुम लोगों को बहुत ज्यादा करंट चाहिए और बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, एसी या फिर डीसी. ठीक है. आगे एक्चुएटर लगा हुआ है, बड़ी मोटर लगी हुई है हाई पावर रेटिंग की, या फिर बड़ा एक्चुएटर लगा हुआ है जिसको अराउंड 230 वोल्ट ऐसा कुछ वोल्टेज और करंट रेटिंग भी 15 एम्पियर एफएस सारा कुछ चाहिए, वहां पे तुम लोग को इन्वर्टर यूज करना. इन्वर्टर मेनली डीसी आउटपुट चाहिए, एसी आउटपुट चाहिए. एसी मोटर तब बाकी रेक्टिफायर, डीसी मोटर हो तो रेक्टिफायर. बाकी एप्लीकेशन और हम लोग को पता चलेंगे. सीरीज इन्वर्टर की बात करते हैं हम लोग. सीरीज इन्वर्टर में हम लोग देख रहे हैं सर्किट. तो ये सर्किट को आप ऐसे भी देखो कि ईडीसी के बाद SCR1 आता है. ठीक है. और पहले अभी SCR2 को भूल जाओ. ठीक है. SCR2 अभी है नहीं, SCR1 है, फिर कैपेसिटर है, फिर इंडक्टर है, फिर रेजिस्टर है. ठीक है. तो अब इतना समझना है कि पहले तो SCR मेरा ओपन सर्किट है. ठीक है. मैंने उसको ट्रिगर किया नहीं है. और कैपेसिटर जो है वो पहले से मैं अज्यूम करता हूं कि वो चार्ज है. एक मिनट. हाँ. तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव से वो चार्ज है ऐसा मैं अज्यूम करता हूं. ठीक है. तो अब क्या होगा? अभी मैंने SCR2 तो कंसिडर नहीं किया, वो भी सर्किट में नहीं है. SCR1 मैंने ट्रिगर किया. ठीक है. SCR1 ट्रिगर करने से पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, कैपेसिटर लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव से चार्ज था. करंट फ्लो नहीं हो रहा था क्योंकि पाथ कंप्लीट नहीं था. जैसे ही मैंने SCR1 ऑन किया तो करंट फ्लो होना चालू हुआ. मेरा जो कैपेसिटर है लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है, उसकी जो पोलैरिटी है और ईडीसी की जो पोलैरिटी, ईडीसी की पोलैरिटी भी ऐसी होगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वो दोनों ऐड होके टोटल वोल्टेज होगा ईडीसी प्लस ईसी. कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा. कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, और धीरे धीरे इंडक्टर चार्ज होगा. इंडक्टर पूरा चार्ज होगा. लोड के क्रॉस करंट जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है तुमको. फिर इंडक्टर पूरा चार्ज हुआ. ठीक है. इंडक्टर कैसे चार्ज होगा? लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव. इंडक्टर पूरा चार्ज होने के बाद वो उल्टी पोलैरिटी से कैपेसिटर को चार्ज करेगा.
वापस एक बार बता रहा हूं मैं, कैपेसिटर लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव से चार्ज था, वो पूरा डिस्चार्ज हुआ, इंडक्टर को चार्ज किया, इंडक्टर ने अभी उल्टी पोलैरिटी से कैपेसिटर को चार्ज करना चालू किया। अब कैपेसिटर लेफ्ट साइड प्लस और राइट साइड माइनस से चार्ज हो रहा है। अब कोई भी सर्किट में पाथ में कैपेसिटर फुल वोल्टेज कितने तक चार्ज होता है, जितना भी वोल्टेज सर्किट में हो उतना। अपने सर्किट में कितना है, ईडीसी प्लस ईसी वोल्टेज है, तो ईडीसी प्लस ईसी वोल्टेज तक कैपेसिटर उल्टी पोलैरिटी से चार्ज होगा। मतलब फाइनल कंडीशन ये होगी कि कैपेसिटर के लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव में ईडीसी प्लस ईसी वोल्टेज होगा। तब हम लोग एससीआर पे देखेंगे कि एससीआर के लेफ्ट साइड पे एनोड पे ईडीसी वोल्टेज है, लेकिन कैथोड पे जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है तो ईडीसी प्लस ईसी वोल्टेज है। तो उल्टा करंट कैपेसिटर की ओर से जाएगा, या फिर रिवर्स बायस समझ के तुम इतना समझो कि T1 कम्यूटेट हो गया। ठीक है, इसने अभी वेवफॉर्म कहाँ बनाई है वो देखना पड़ेगा। हाँ, ये रहा, कुछ ज्यादा ही अच्छा वेवफॉर्म बनाया है। 1 मिनट। समझ में ना आया हो तो कमेंट में जरूर, मतलब चैट में लिखना। मैं सोच रहा था कि मेरा जो ग्राफ है वो मैं बताऊं, इसीलिए 1 मिनट। नहीं, छोड़ो, इसके ही ग्राफ में कुछ समझाने की कोशिश करते। हाँ, तो इसका जो मैं वीडियो में बताऊं ना, हाँ तो स्क्रीन शेयरिंग बंद करो बराबर थोड़ी बार। वीडियो क्लियर ना आ रहा हो तो बोलिएगा। मुझे सिर्फ ग्राफ दिखाना है वैसे तो दिखे। पांडुरंगा पांडुरंगा। आओ जाओ भाई, फोन मध्ये धुती निकली। डिराइव कर सकते हो इतना, हम लोग को नोडल एनालिसिस आता है। ये जो हमारा लूप है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ का जो थायरिस्टर है वो कंसिडर नहीं किया है, तो V प्लस ईसी, स्टार्टिंग की इक्वेशन है ये, जब यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, V प्लस ईसी, ठीक है, ये दोनों सप्लाई कर रहे हैं। फिर पहले कैपेसिटर सप्लाई कर रहा होगा, फिर वो कंज्यूम भी करेगा, तो सप्लाई इस साइड पे, फिर कंज्यूमिंग इस साइड पे। रेजिस्टर लोड के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, IR, आई करंट अगर फ्लो रहा है तो, प्लस LDI/dt, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो भी, फिर कैपेसिटर का 1/c इंटीग्रेशन IDT। तो ये उसकी इक्वेशन, फिर उसका हमारा IT का जो इक्वेशन बनता है, ठीक है। और वैसे ही 2FR की जो बात है, मतलब ओमेगा आर की इससे ही इक्वेशन तुम डिराइव करोगे तो ऐसी आएगी 1/LC माइनस R²/4L² होल रूट। ओमेगा आर इज द रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा कुछ, मतलब ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी। तो 2πf इज इक्वल टू ओमेगा आर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी डिफरेंशिएशन बताऊंगा आपको मैं। तो FR इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहले एक बार ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ग्राफ देखो, ग्राफ दिख रहा है सही से, चैट में लिख दो यार। नॉट क्लियर, जियो। બે જ છે યાર, બે જ છે। ગ્રાફ દેખાય છે કે નહીં? ના પાડો તો ના દેખાતી હોય। સ્ટેબલ થશે ને પછી એક દેખાશે, મિનિટ। જરા વાર લાગશે. ફોટો ફોટો પાડીને તારા ફોનમાં ગેલેરીમાંથી પ્રેઝન્ટ કરીને આ અરે હા હા, અરે હું તો ભૂલી ગયો, મારી આપણી પોતાની નોટ છે, આપણે પોતાની નોટ શેર કરીએ, આવું થોડી। बंद कर लो। तो ग्राफ की बात मैं समझा रहा था, ये ओमेगा आर की बातें थी, ठीक है। और हाँ, यही कि ओमेगा आर अगर तुमको चाहिए सही से फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो R² शुड बी लेस देन 4L/c। ओके, ग्राफ की बात करते हैं, शांति से समझो थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं मैं।
हाँ, तो ऊपर ये तुम्हारा सर्किट दिख रहा है तुमको, और यहाँ पे तुम लोगों को ग्राफ दिख रहा है. नाही मला काम येतं नेट जातं माझं. आता शिकवते 5-10 लोक शिकतात. थँक्यू. ऑन बी सके. आई एम सीरियस. थँक्यू. ऐकतात ते लोक. तो यहाँ पे पॉझिटिव्हली करंट फ्लो हो रहा है. ए यार पीडीएफ ड्राइव. आता नाही. हे तुला कसं नाही आलं ते? સંભળાય છે? સંભળાતું છે? સોરી વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ આવી ગયું. મને નહીં આવતું. મને બી નહીં આવતું. તો બોલો તો ખરા ગાંડાઓ યાર, એવું કેમ કરો છો? બોલો, લખો થોડું. ક્યારથી નથી આવતો? 2 મિનિટ. લેટેસ્ટ ટોપિક ખબર? हाँ चलो, हूँ जेवी तो समझावा याद आवશે सब समझो. चलो, पहले तो इतना था कि हम लोगों ने कमिटेड कर लिया था SCR1. इस कैपेसिटर को प्लस माइनस EDC प्लस EC से चार्ज होता ड्यू टू इंटर हुआ था, और SCR1 कमिटेड हुआ था. उसके बाद हम लोग ये जो AB है वो जानबूझ के हम लोग गैप दे रहे हैं टाइम का. ये सेफ्टी टाइम है, क्योंकि अगर मैंने जस्ट इसके बाद ही SCR2 को भी चालू कर दिया तो ये नहीं हुआ तो शॉर्ट हो जाएगा DC सप्लाई. ऐसे इसे इसीलिए AB टाइम देना पड़ेगा. थोड़ी देर बाद ही चालू होगा. कंफर्म T1 बन चुका है. कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज है, कैपेसिटर चार्ज है, तो जैसे ही मैं T2 को चालू करूँ कैपेसिटर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे होगा, और करंट ऐसे फ्लो करेगा, कहीं से IC फ्लो करेगा. मतलब वोल्टेज नेगेटिव हो गया क्या? करंट वोल्टेज नेगेटिव हो गया. आज ब्रेक नहीं था तो वोल्टेज नेगेटिव हो. और बराबर है. धीमू बोलो, थोड़ा धीमू बोलो, फास्ट ना ले जैसे. तो ના મરસી ના હોય ના કહેજો ભાઈ, બ્રેક ધીમો બોલીશ. हाँ, આપણે क्या था, मतलब हम लोगों ने TAB का ब्रेक दिया, उसके बाद हम लोगों ने SCR એ મોબાઈલ નીચે રાખ્યો છે ને એટલે લોચાને. किया. तो कैपेसिटी अलग माइक तो પાસે છે ને, એમ વાત એ છે. ઓકે અરે સિગ્નલ માટે કે છે એટલે ઉપર લઈ લો ફોન. સિગ્નલ સારો આવવા માટે કહેતો હોય તો. હા
હવે બરોબર ચાલો ટીએ હા ટીએબી નો ટાઈમ આપ્યો મેં થોડો બરાબર માઇક કે પાસ લીધો છું ટીએબી નો ટાઈમ આપ્યો પછી મેં ટી2 ને ચાલુ કર્યો ટી2 ને મેં ચાલુ કર્યો બરાબર સેફટી નો ટાઈમ લઈને એટલે કેપેસિટર મારો લેફ્ટ સાઈડ પોઝિટિવ ને રાઈટ સાઈડ નેગેટિવ થી ચાર્જ હતો તો એ ડિસ્ચાર્જ થઈને આવું ઉપર કરંટ આપવા લાગ્યો અને રેઝિસ્ટર ને ઊંધી ડાયરેક્શન માંથી કરંટ આવીને આવું ઊંધો વોલ્ટેજ આવવા લાગ્યો આમાં પણ એવું જ થશે અહીંયા લેफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा मेरे प्यारे इंडक्टर को राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव से चार्ज करेगा कैपेसिटर पूरा खाली होगा इंडक्टर चार्ज हो जाएगा इंडक्टर बोलेगा मैं करंट की डायरेक्शन चेंज होने नहीं दूंगा वो मैं अपनी पोलैरिटी चेंज कर लूंगा बट मैं करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज कर दूंगा तो इंडक्टर का यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव था बट वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव और कैपेसिटर को उल्टी साइड से चार्ज करेगा क्योंकि उसको करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होने देनी तो वो डिस्चार्ज होकर कैपेसिटर को वापस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव से चार्ज करेगा तो कहानी वही है दोस्तों कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव से कैपेसिटर पे पूरा वोल्टेज आ जाएगा एडीसी प्लस एसी वापस कहानी वही होगी कि T2 को रिवर्स बायस वोल्टेज मिलेगा और वो कम्यूटेट हो जाएगा वापस हम लोग टीएबी का टाइम देंगे सेफ्टी के लिए फिर T1 चालू कर देंगे ये है दोस्तों सीरीज इन्वर्टर और थोड़ी सी भावना हम लोग समझेंगे कि टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू TRA प्लस 2TAB क्यों नहीं भाई यही तो होगा यहाँ पे देखते हैं तो TR/2 TAB TR/2 TAB तो टोटल ये TR और 2 TAB तो उतना ही टाइम पीरियड आएगा ना तो इससे आउटपुट फ्रीक्वेंसी डिफाइन होगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू TR/2 प्लस TAB इसका डबल ठीक है लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब यार आउटपुट एग्जैक्टली कितना टाइम के लिए आउटपुट मिल रहा है तो वो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ही 1 बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करके मेरे को रेजोनेंट टाइम मिल जाएगा दैट इज TR ठीक है अब हम लोग थोड़ा सा इसकी दिक्कत और क्या है क्या प्रॉब्लम है भाई सीरीज इन्वर्टर में तो शॉर्ट सर्किट पॉसिबिलिटी है डीसी सोर्स की अगर मैं दोनों को एक साथ चालू कर देता हूँ टीएबी मैंने बहुत कम रख दिया तो मेरा डीसी सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो कमेंट में लिखना इन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी लिमिट ड्यू टू टीएबी बोल बोलो लैपटॉप से ट्राई करिए જોઈએ ને તો હજી આવે તો હું પછી લેપટોપ થી બોલવાનું ચાલુ કરીશ હમણાં ફોન થી બોલું છું હા પરફેક્ટ આવ્યો ઓકે ઓકે હવે હજી બરાબર છે બરાબર છે હા तो पहलो पॉइंट હતો शॉर्ट सर्किट पॉसिबिलिटी ऑफ डीसी सोर्स सेकंड पॉइंट है इन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी लिमिट तो भैया इन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी लिमिट क्या होता है तो ये जो टीएबी है ठीक है टीआर तो मेरा फिक्स हो जाएगा एक बार मैंने एफआर क्या है एफआर किस पे डिपेंड करता है कंपोनेंट्स पे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स पे तो एफआर तो फिक्स हो जाएगा एक बार सर्किट फिक्स करने के बाद मेरे हाथ में क्या होगा टीएबी मतलब मैं ट्रिगर कितने टाइम में करता हूँ इसके साथ मेरे हाथ में टीएबी होगा तो लेकिन मुझे थोड़ा टीएबी तो देना ही पड़ेगा मतलब नीचे की टर्म थोड़ी ज्यादा तो होनी ही पड़ेगी मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट है उससे उसको मैं आगे और नहीं ले जा सकता अगर मेरा टीएबी 0 होता तो मेरी आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी माय रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी लेकिन मेरा टीएबी कुछ होता है इसलिए मेरी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उससे कम होती है ठीक है तो मैं उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा पाता ड्यू टू टीएबी तो ये सेकंड प्रॉब्लम था रेटिंग ऑफ कम्यूटेटिंग कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तुम लोग हैंडराइटिंग पता नहीं चल रही होगी इसमें बोल रहा हूँ सुनो तो रेटिंग बहुत हाई होती है क्यों हाई होती है पहली बात सीरीज में है यार जितना करंट लोड में जाएगा उतना ही करंट कंपोनेंट में भी जाएगा तो करंट रेटिंग के हिसाब से साइज भी बढ़ती है और पैसे भी बढ़ते हैं ठीक है तो हाई रेटिंग की कंपोनेंट देने पड़ते हैं मुझे यही रहा हाँ ठीक है और दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला टोटल पावर हैज टू बी ट्रांसफर टू कैपेसिटर टोटली विद इन पॉजिटिव हाफ साइकिल समझ रहे हो मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा सप्लाई मुझे हेल्प कर रहा है लोड को चलाने के लिए ठीक है लेकिन जैसे ही मैंने T2 को ऑन किया T1 कम्यूटेट होने के बाद तो सप्लाई का कुछ नाता नहीं है भाई करंट इधर ही फ्लो हो रहा है तो सिर्फ कैपेसिटर ही मुझे पूरा आउटपुट दे रहा है तो आधे हाफ साइकिल में ही इतने टाइम में ही कैपेसिटर को पूरा एडीसी प्लस एसी तक चार्ज हो जाना है तो कैपेसिटर की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए ना वो भी एक पॉइंट था फिर हाई रेटिंग हो तो साइज भी हाई होगी और कॉस्ट भी हाई होगा ठीक है अब आउटपुट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑन लोड ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आउटपुट रेगुलेशन ऑफ सीरीज हाँ मतलब इसमें भी यही बात आती है फाइनली तुम इक्वेशन पे जाके टपकते हो ओमेगा आर इक्वल 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाय 4LC 4L स्क्वायर तो आर आ गया मतलब लोड का रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी की लग गई तो इसे ही कहते हैं आउटपुट रेगुलेशन ऑफ सीरीज इन्वर्टर इज पुअर मतलब अगर आउटपुट मतलब लोड में कुछ चेंज आया तो वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा अच्छी से इसीलिए आउटपुट रेगुलेशन ऑफ सीरीज इन्वर्टर इज पुअर ठीक है
और हाँ, ये समझने वाली बात है, इसमें थोड़ा मजा आएगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। भाई क्यों बढ़ेगा यार? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आउटपुट वोल्टेज क्यों बढ़ेगा? तो फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है हम लोग देखेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज 1/t, ठीक है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 आउटपुट टाइम। तो उसमें यार टीआर तो कांस्टेंट ही है, रेजोनेंट टाइम जो है वो कांस्टेंट है, कंपोनेंट तो मैं चेंज करने वाला हूँ नहीं। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, टोटल टाइम कम करना है, तो मुझे टीए भी कम करना पड़ेगा। अगर मैं टीए भी कम करता हूँ तो इतना समझो यार, एक वेवफॉर्म है मेरा प्यारा छोटा सा, तो इसके अंदर मैं टीए भी कम करूंगा तो ज्यादा टाइम के लिए आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? थैंक यू। तो हाँ, तो बस वही कहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, बस सिंपल बात है। तो पहले हाँ, तो ठीक है। अब एक बार हाँ, वही है जैसा बात है कि फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, टीएबी तुम चेंज कर सकते हो, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जनरेट टीएबी पे ही डिपेंड करेगी। ये फोटो थोड़ा ज्यादा ही खराब है, ठीक है, तो भी थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर की बात आती है, ऐसा है तो इसे हम लोग, एक मिनट स्टॉप करता हूँ, ऋषि के नोट से पढ़ लेते हैं अगर मुझे अच्छा लगे। हेलो देखा है जे? हेलो आकाश, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर्किट पर ऊपर ले गया था, डाउट हाँ છે. हाँ, कई सीरीज में હા સિરીઝમાં ઉપર टाइम બે पर आई हो तो ना, પછી लेट नતો आयो ने तू? ના ના हाँ बोलो। એમ કે આમાં કેપેસિટર પર ઈસી પ્લસ 2 ઈડીસી આવી જાય બરાબર ना ना, ईडीसी प्लस ईसी, टू ईडीसी नहीं। ને हाँ हाँ પછી લેફ્ટ સાઈડ પોઝિટિવ ને રાઈટ સાઈડ નેગેટિવ આવે બરાબર हाँ, પછી टी1 कम्यूटेट થાય। हाँ પછી આ તો પણ ઇન્ડક્ટર બી એ પોલારિટીમાં ચાર્જ થશે ને ઇન્ડક્ટર ની પોલારિટી જાણવી તારે? હા ઇન્ડક્ટર એ પોલારિટીમાં ચાર્જ થશે બરાબર પ્લસ ને માઇનસ પછી ઇન્ડક્ટર ઇન્ડક્ટર પહેલા લેફ્ટ પોઝિટિવ રાઈટ નેગેટિવ માં ચાર્જ થશે, લેફ્ટ પછી એ પોઝિટિવ ડિસ્ચાર્જ, હા હા પહેલા લેફ્ટ પોઝિટિવ, હા 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 બરાબર પછી મને એ ડિસ્ચાર્જ થવા માટે રાઈટ પોઝિટિવ લેફ્ટ નેગેટિવ આવી જશે અને કેપેસિટર ને ચાર્જ કરશે। તો ત્યારે કેપેસિટરની પોલારિટી ને ઇન્ડક્ટરની પોલારિટી અપોઝ નહીં કરે એકબીજાને હા હા, કરી શકે ને, એ હિસાબથી એના વોલ્ટેજમાં પણ એટલો ફેર હશે કે આનો થોડો ઈડીસી પ્લસ થોડુંક હશે અને વધેલો જે ઈસી માંથી વધેલો છે એટલો ઇન્ડક્ટર પાસે હશે, એવું કંઈક એટલે કે આનો સરખું જ ઈડીસી, કરી જશે એમ કેપેસિટરનું વોલ્ટેજ ઇન્ડક્ટરને પોલારિટીને કેપેસિટર ઇન્ડક્ટર નું મળીને પ્લસ માઇનસ કરીને જે બી ફાઇનલ વોલ્ટેજ આવશે ને એ ઈડીસી એ પ્લસ ઈસી જ આવશે। ઈડીસી જ આવશે ને ખાલી ઈડીસી પ્લસ ઈસી, તમે ઈડીસી કેપેસિટર પહેલેથી ચાર્જ હતું એવું અઝ્યુમ કર્યું એટલે ઓકે એટલે લોડ પર ઈડીસી પ્લસ જે વધેલું હોય તે રોડ પર ઈડીસી પ્લસ ઈસી આવશે દર વખતે, લોડ પર તો ઈડીસી પ્લસ ઈસી જ આવશે। તો ઇન્ડક્ટર જે ચાર્જ થયું તે અપોઝ વોલ્ટેજ ડ્રોપ થવો જોઈએ ને એટલે એ આપણે કેપેસિટર આઈડિયલ ગણીએ છીએ ને યાર, કે ડ્રોપ ઓછો થાય છે એમ, સારું લોડ પર બધું મળી જાય છે, સારું ઓકે કે એ લોકો સપ્લાય પર વધારે ધ્યાન આપે છે એમ। હા, છે બીજા કોઈને પૂછે તો પૂછી લેજો ભાઈ, બાકી આપણે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ તો બધું કરવાનો ટ્રાય કરીએ જ છીએ। मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर, बराबर, मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर में बहुत मजा आवશે। तो जो भी सीरीज इन्वर्टर की दिक्कतें थी वो सारी हम लोग मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर में उखाड़ लेंगे, ठीक है। डायग्राम एक बार तुम्हें बता रहा हूँ, किसी को दिख नहीं रहा हो तो, ये ईडीसी बैटरी है, ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, ये अपना लोड रेजिस्टर है बीच में, यहाँ पे अपना T1 थायरिस्टर है, ठीक है, T1 थायरिस्टर, फिर अपना L1 इंडक्टर, L2 इंडक्टर और T2 थायरिस्टर। ये दोनों म्यूचुअली कपल्ड है, म्यूचुअली कपल्ड मतलब इसकी अक्रॉस जितना वोल्टेज उतना एक उसका उतना ही इसके अक्रॉस भी वोल्टेज होगा, ठीक है। अब शुरुआत में क्या है कि ईडीसी वोल्टेज यहाँ पे, और हम लोग अजम्पशन ये लेते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, अजम्पशन ये लेते हैं कि कैपेसिटर C2 जो है वो ऊपर माइनस नीचे प्लस से ईसी वोल्टेज है उसके ऊपर, ठीक है, ईडीसी और ईसी, यहाँ पे ईसी वोल्टेज पहले से है ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये मैंने जूम किया। अब इतना समझने वाली बात है कि ये पूरी जो लाइन है और ये पूरी जो लाइन है वो पैरेलल में, तो वोल्टेज सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ईडीसी तो यहाँ पे भी टोटल ईडीसी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों की पोलैरिटी उल्टी गिन के, ठीक है, ऊपर प्लस माइनस और इधर माइनस प्लस, तो यहाँ पे तो ईसी मैंने अज्यूम किया था, तो इन दोनों का टोटल ईडीसी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ईडीसी प्लस ईसी वोल्टेज C1 पे गिना जाता है क्योंकि यहाँ पे ईसी वोल्टेज है इसीलिए, तो C2 पे ईसी ऊपर माइनस नीचे प्लस, और यहाँ पे ईडीसी प्लस ईसी ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। और इनिशियली तुम्हारा करंट अगर तुम बोल रहे हो तो
स्टार्टिंग में बस ऐसा फ्लो होता है, फिर जैसे ही पूरे कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं फिर करंट रुक जाता है, फिर करंट फ्लो ही नहीं होता है, पहले ऐसा फ्लो होता है फिर फ्लो ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे इधर ईडीसी प्लस ईसी प्लस माइनस और इधर ईसी माइनस प्लस कंफर्म हो जाता है, फिर वो फ्लो नहीं करता है। फिर तुम T1 चालू करोगे। ठीक है, T1 जैसे ही तुम चालू करोगे तो क्या होगा, दो करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, दो करंट कौन से फ्लो करेंगे, एक I2 फ्लो करेगा। I2 कहां से फ्लो करेगा, ईडीसी T1 L1 R EC2 मतलब C2 और बैटरी, मतलब बैटरी T1 L1 R C2, ये था I2 करंट। ठीक है, और इसको अगर हम लोग I1 कंसीडर करें तो C1 T1 L1 R, C1 T1 L1 R दैट इज I1, दो करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, पहले वापस एक बार हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाली सर्किट में एक कैपेसिटर एक इंडक्टर था, इधर दो कैपेसिटर दो इंडक्टर है, मतलब वैसे डिफरेंस देखोगे तो इधर कम्यूटेटिंग कंपाउंड्स बढ़ गए। ठीक है, बाकी थायरिस्टर उतना ही है, लोड तो रहना ही था। तो अभी हम लोग और देखते हैं तो होता क्या है। ठीक है, मैंने चालू कर दिया अभी थायरिस्टर, थायरिस्टर मैंने चालू किया, कैपेसिटर ऊपर माइनस नीचे प्लस पोलैरिटी थी। ठीक है, मतलब ये ईडीसी और इसका ईसी, ईडीसी प्लस ईसी आउटपुट वोल्टेज मुझे आर पे मिल रहा था, क्योंकि इन दोनों की पोलैरिटी देखो, प्लस यहाँ पे फिर वापस घूम के प्लस यहाँ पे, दोनों ऐड हो रहे थे, तो मेरा आउटपुट पे ईडीसी प्लस ईसी वोल्टेज आ रहा था। अब भाई कैपेसिटर इंडक्टर है, मतलब वो डिस्चार्ज चार्ज का लफड़ा तो रह गई, तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा मेरा डीसी प्लस ईसी से। ठीक है, और वो मेरे इंडक्टर को चार्ज करेगा। वापस कहानी वही है, इंडक्टर पूरा चार्ज होगा। ठीक है, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर कैपेसिटर को उल्टी पोलैरिटी में चार्ज करेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, कैपेसिटर को उल्टी पोलैरिटी में चार्ज करेगा। अब कैपेसिटर को उल्टी पोलैरिटी में चार्ज करेगा और ऑलमोस्ट ये जो C2 है वो उल्टी पोलैरिटी में, मतलब ऊपर प्लस और नीचे माइनस में ईडीसी के ऊपर वोल्टेज आ चुका होगा, ईडीसी प्लस ईसी तक फाइनल जाएगा। मैंने आपको क्या बोला कि सीरीज में कोई भी कैपेसिटर लगा हुआ है तो पूरे लूप में जितना वोल्टेज है ना उतने तक वो चार्ज होगा। तो ये ईडीसी प्लस ईसी ऊपर प्लस नीचे माइनस के वोल्टेज से चार्ज हो रहा होगा, तब तुम T2 चालू कर दोगे, तुमको मजा आएगा, तुम T2 चालू कर दोगे। ठीक है, अब समझने वाली बात यही है, अगर मैं सीरीज इन्वर्टर में T2 चालू करता ना, T1 चालू है तो डीसी सप्लाई शॉर्ट हो जाता है, यहाँ पे नहीं होगा, क्यों वही तो देखना है। तो T2 चालू कर दिया मैंने। ठीक है, T2 चालू किया है, कैपेसिटर के अक्रॉस ऊपर प्लस नीचे माइनस से ईडीसी से ज्यादा वोल्टेज है। तो तुम इतना समझो कि जैसे ही मैंने इसको चालू किया, ठीक है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आया वो देखो, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो पूरा L2 और T2 के अक्रॉस आएगा। T2 तो चालू हो गया, वो शॉर्ट है। ठीक है, तो बाकी सारा वोल्टेज L2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो L2 के अक्रॉस ऑलमोस्ट ईडीसी से ज्यादा वोल्टेज आ गया, ईडीसी गिन लो अभी, ईडीसी ज्यादा ही होगा थोड़ा, ईडीसी गिन लो, तो L2 के अक्रॉस ईडीसी वोल्टेज और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से L1 के अक्रॉस भी ईडीसी वोल्टेज। ठीक है, तो T1 के एनोड पे कितना है ईडीसी, T1 के कैथोड पे कितना है 2 ईडीसी। T1 तो यार कम्यूटेड हो गया, जैसे ही मैंने T2 चालू किया तो कैपेसिटर जितना चार्ज हुआ है उतना वोल्टेज L2 पे आ जाता है और उसका ही डबल यहाँ पे कैथोड पे आ जाता है, फिर T1 कमिटेड हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे डीसी सप्लाई शॉर्ट नहीं होता है अगर तुम T2 चालू कर देते हो तो भी तुम सेफ्टी के लिए थोड़ा टाइम के बाद ही चालू करते हो, ऐसा वो तो ठीक है, वो आते हैं हम लोग उसके ऊपर। तो T2 चालू करने के बाद क्या हुआ, T1 कमिटेड हो गया। ठीक है, वापस इधर दो करंट फ्लो होंगे। ठीक है, और उस तक ये सब हम लोग ये भी देखना है कि जैसे ये उल्टी पोलैरिटी में चार्ज हो गया ना एंडिंग तक, ऊपर प्लस नीचे माइनस ईडीसी से ऊपर, वैसे ही ये ऊपर प्लस नीचे माइनस था, ये भी जो करंट फ्लो हो रहा था जब T1 चालू था, ये भी डिस्चार्ज होके उल्टा चार्ज हो जाता है और इसका इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, और ईसी वोल्टेज एंड दिस बिकम्स ईडीसी प्लस ईसी। अब कैसे करंट फ्लो होगा, अब मेरा करंट T2 के थ्रू फ्लो होने वाला है, T1 कमिटेड हो चुका है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन लोड के थ्रू भी उल्टी हो जाएगी, मतलब वेवफॉर्म पहला मेरा ऐसा आ रहा था तो अब मेरा वेवफॉर्म ऐसे आएगा। तो अब मेरा पाथ क्या होगा, ईडीसी C1 R L2 T2 ईडीसी, दिस इज एक करंट। दूसरा करंट मेरा होगा नीचे वाला डब्बा, पहले ऊपर वाला था, C2 R L2 T2 C2 ऐसे। ठीक है, बस सिंपल ही तो है, ये पाथ ही दिए हुए हैं। और हाँ एक दूसरी बात, तो ये जो दो करंट फ्लो हो रहे हैं I2 और I1, ठीक है, एक I2 जा रहा है
एक इसका I1 गिन रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग इनिशियल फेज की बात करें तो अगर कैपेसिटर की दोनों वैल्यू सेम है, L1 और L2 भी दोनों सेम है, तो I2 और ये जो I1 है क्या दोनों सेम होंगे, और लोड करंट डिवाइड हो जाएगा, लोड करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब I2 प्लस I1, ये पूरा लोड करंट बन जाएगा। ठीक है, ये रहा, कैपेसिटर और की वैल्यू सेम हो और इंडक्टर की वैल्यू सेम हो तो I1 इज इक्वल टू I2 और IL इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ग्राफ देखने के लिए हम लोग ऋषि की नोट्स खोल लेते हैं फटाफट। ये उसका सीरीज था, ये सब TAB की जो हम लोग बात की सीरीज में वो। ठीक है, उसके नीचे जाते हैं हम लोग, मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर। हाँ, ये रहे मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर के ग्राफ्स। ठीक है, तो ये रहा, इसकी बात चल रही थी। तो ये जो हमारा वोल्टेज है ना, ये सर ये कैपेसिटर के वोल्टेज, ये हम लोग जो देख रहे हैं, और ये ट्रिगरिंग है, तो ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, और ये करंट का ग्राफ है। मतलब बात क्या थी यार ग्राफ के साथ, कोई बात नहीं, जब हम लोग ट्रिगर करते हैं तो एक को हम लोग चार्ज ऐसे अज्यूम करते हैं और दूसरे को ऐसे उल्टा, फिर डिक्रीज होके फुल चार्ज जब दोनों हो जाते हैं तब वापस फुल से खुद से ही कमिटेड हो जाएगा, और इतना टाइम तुम दोगे, ये टाइम भी कम कर सकते हो, बट इतना थोड़ा सेफ्टी के लिए टाइम दे रहे फिर दूसरा चालू कर देते। मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर में हम लोग को फायदे क्या क्या होंगे? ठीक है, एक मिनट। मतलब डिफरेंसेस ही है वैसे तो बेसिक सीरीज इन्वर्टर में क्या था, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट जो थे वो मेरे सीरीज में थे, तो उनकी रेटिंग हाई थी। ठीक है, उनका कॉस्ट हाई था, उनकी साइज हाई थी। मॉडिफाइड सीरीज इन्वर्टर में मेरा क्या हुआ कि कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स सीरीज में ही है लेकिन उनका नंबर बढ़ गया है। ठीक है, तो उनकी रेटिंग कम हो गई है। कि रेटिंग कैसे कम हुई, तो मेरा करंट डिवाइड हुआ, लोड करंट इज इक्वल टू, बोल बोल, हेलो, ठीक है, डाउट नहीं, शुरुआत से करते हैं यार। मॉडिफाइड मॉडिफाइड में डबल कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि रेटिंग हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है। और मेरा दूसरा फायदा क्या होता है कि किसी भी लूप में मैं देखूं, ठीक है, मैं अगर पॉजिटिव साइकिल में देखूं या नेगेटिव साइकिल में देखूं, कहीं भी देखो तुम, जब पॉजिटिव जा रहा है तब देखो, नेगेटिव जा रहा है तब देखो, हर बार जो तुम्हारा वोल्टेज आ रहा है वो कैपेसिटर से भी आ रहा है और बैटरी से भी आ रहा है, ऐसे करके। ठीक है, और इस वाले और ऊपर से जब बोल रहे हो तो ऐसे करके ऐसे करके, मतलब सिर्फ सप्लाई जो है वो सिर्फ बैटरी को नहीं देना है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, बैटरी और कैपेसिटर दोनों को देना है। तो पावर रेटिंग जो है वो बैटरी की भी कम पड़ती है तुमको, सप्लाई की भी कम देनी पड़ती है, और कैपेसिटर की भी कम रेटिंग देनी पड़ती है। लाइन टू लाइन ही पकड़ पढ़ लू। शॉर्ट सर्किट कैन हैपन इन बेसिक, ठीक है, सीरीज इन्वर्टर, लेकिन मॉडिफाइड में शॉर्ट सर्किट की पॉसिबिलिटी नहीं है। रेटिंग ऑफ पावर सप्लाई मैंने जब भी बोला कि यहाँ पे कम होगा, वहां पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। कंप्यूटिंग कंपोनेंट ज्यादा है तो उनकी भी रेटिंग्स कम होनी पड़ेगी। ठीक है, टेढ़े कर दिए नोट्स। और हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स का सर ने थोड़ा समझाया था, बट अब इसको रोटेट कैसे करूं? हाँ करूँ करूँ करूँ, बराबर है, बराबर है। हार्मोनिक्स, ठीक है, हार्मोनिक्स होता क्या है, कोई भी एक साइन वेव कॉस एसी वेव कोई भी लोगे ना, तो इतना समझ लो कि वो कभी भी ऐसे एक नॉर्मल एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव होती नहीं है। उसके अंदर जो फंडामेंटल एक ही फ्रीक्वेंसी होती है जैसे 50 हर्ट्ज, और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की भी वेव्स उसके अंदर होती है, लेकिन 50 हर्ट्ज की जो वेव होगी ना उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा।
150 100 हर्ट्ज, ठीक है, 200 हर्ट्ज, ठीक है, 150 हर्ट्ज, वैसी भी वेव्स होगी बट उनका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, ठीक है। दोज आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। अब उसमें क्या है कि ऑड हार्मोनिक्स और इवन हार्मोनिक्स, मतलब इंटीग्रल ऑर्डर के हार्मोनिक्स होते हैं। अगर 50 हर्ट्ज है तो 100 हर्ट्ज होगा, 150 हर्ट्ज होगा, 200 हर्ट्ज होगा, 180 हर्ट्ज नहीं होगा, ठीक है, 50 के मल्टीपल्स में होगा, 1 2 3 4 ऐसा, और 1 3 5 7 ऑड हार्मोनिक्स, 2 4 6 इवन हार्मोनिक्स, ठीक है। और इवन हार्मोनिक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इसलिए उनका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑड है उनको टेंशन लेनी पर जरूरत है, उन्हें फिक्स करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, वो नॉइज वाइज देगा तुमको ऐसा, उसके लिए फिल्टरिंग बिल्टरिंग लगाने का होता है। पावर क्वालिटी तुम्हारी पुअर हो जाती है अगर हार्मोनिक्स तुम्हारे ज्यादा है, मतलब हार्मोनिक्स का अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो। सिंपल इक्वेशन की बात करें, वीएम साइन ओमेगा टी, जनरली फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ठीक है। हाँ, तो हार्मोनिक्स कब ज्यादा होते हैं? जब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी में ज्यादा बढ़ा देता हूँ ना, तो उसके हार्मोनिक्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, जनरली ऑड ऑड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड 3% से ज्यादा हो तो नॉइस का इशू आता है, फिल्टर लगाना पड़ता है। क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस यार तुम देख लेना, फिर ना पता चले तो पूछना, फॉर्मूला ही लगा रहे और कुछ नहीं कर रहे यार, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला था, उसके अंदर एलसी की वैल्यू डाल दो, आउटपुट निकाल दो, टी ए बी से तुम आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकाल दो, टी आर तुम्हें ओमेगा आर से मिल जाएगा, ओमेगा आर से एफ 2 पाई एफ करके एफ आर मिल जाएगा, एफ आर से टी आर मिल जाएगा, टी आउटपुट मिल। तो ये क्वेश्चन तुम लोग एक बार देख लेना। और हाँ, डिजाइन 3 स्टार, ठीक है। हाँ, तो उतने कंपोनेंट ज्यादा लगा के 3 फेज में करना होता है। उसके भी आंसर इसने भी लिखे होंगे, मैंने भी लिखे हैं, तो वो इजी है। क्वेश्चंस देख लेना, हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। पैरेलल इन्वर्टर, बूम बूम बूम, બધું બરાબર જાય છે ભાઈ? पैरेलल इन्वर्टर, तो पैरेलल इन्वर्टर को पैरेलल इन्वर्टर क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है, कम्यूटेटिंग एलिमेंट अगर लोड के पैरेलल में है तो उसे पैरेलल इन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। वापस मैं कहना चाहूंगा, एससीआर पैरेलल में नहीं है, कम्यूटेटिंग एलिमेंट पैरेलल में। तो यहाँ पे कहानी कैसी है? हाँ, तो यहाँ पे कहानी कैसी है, ठीक है। ईडीसी यहाँ पे है, ठीक है, ईडीसी मुझे दिख रहा है, फिर अरे यहाँ पे लाइन है भाई, ये लाइन ऐसे जाके सेंटर में जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डॉट कन्वेंशन का डाउट पूछा था। इंडक्टर, इंडक्टर फिर यहाँ पे बीच में आ रहा है, इंडक्टर बोल लो या फिर ट्रांसफॉर्मर के सेंटर टाइप, लेफ्ट साइड आर N/2 एस, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर पैरेलल में T1 और T2। तो इसमें हम लोग देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल कैसे होगी। यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप डाउन करके फिर लोड दे दिया है, ठीक है। लोड की करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, उसके हिसाब से हमारा वोल्टेज का पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो T1 पहले ट्रिगर करते हैं, ठीक है। T1 हम लोग ट्रिगर करेंगे, तो अगर T1 ट्रिगर करता हूं मैं, ठीक है, तो दो बात मिलना चाहिए। पहले इंडक्टर के थ्रू करंट आएगा, ठीक है, एक आएगा यहां से आर सीधा इंडक्टर, यहां से एस कैपेसिटर इंडक्टर, T2 तो क्लोज्ड है, यहां से करंट फ्लो होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे जब यहाँ से करंट आ रहा है तो इंडक्टर में यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और डॉट कन्वेंशन से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। और जो वोल्टेज होता है वो आधा आधा डिवाइड होता है, मतलब यहाँ पे ईडीसी जो आ रहा था तो यहाँ पे प्लस माइनस ईडीसी, और यहाँ पे भी प्लस माइनस ईडीसी, तो यहाँ पे 2 ईडीसी जाता है, 2 वीडीसी, मतलब उसने वीडीसी लिखा है ईडीसी। तो T1 इज ट्रिगर्ड, हाँ, तो सेंटर मतलब आर के थ्रू N/2 से आर से फ्लो होगा, और जैसे ही मैं T2 ट्रिगर करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है? तो कैपेसिटर के एक तो वेरी सिंपल पहले से बात करते हैं, तो एल से यहाँ पे आया इनिशियली, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव से पूरा ईडीसी वोल्टेज यहाँ पे आ गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे ईडीसी, फिर यहाँ पे भी ईडीसी प्लस माइनस, तो ये टोटल 2 ईडीसी पैरेलल में कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में भी 2 ईडीसी, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव था, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, अब T2 को ऑन कर दिया,
तो जैसे ही मैं C2 को ऑन करता हूँ, मतलब T2 को ऑन करता हूँ, तो क्या होता है? T2 को ऑन करते ही हेलो હેલો हेलो हाँ 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 આ મને થોડુંક ભૂલાઈ ગયું છે, કોઈને યાદ હોય તો કહેજો ભાઈ, હું એકવાર વાંચું છું 1 મિનિટ. તો સુધી કોઈને આવડતું હોય તો કહી શકે, 1-2 મિનિટ વાંચું છું. ગજુ ગજુ કે છે ગજુ હા ભાઈ, એકબીજાનું નામ ના લો, જેને આવડતું હોય બોલો, ને તો શાંતિ રાખો. સોરી ટ્રાય કરો ને હવે, જે બી લાગતું હોય. કેપેસિટર સ્ટોપ ચાર્જિંગ એન્ડ સ્ટેડી સ્ટેટ cross capacitor will be full ADC but is inductor short circuit at steady state. Steady state current is constant, duality is 0, inductor is 0, steady state voltage across capacitor is 2 ADC. ठीक है ना यार, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? Initially path 1 is followed. मतलब N2R से follow होता है, N2R से follow होता जाता है. Initial reference PDC voltage must be same to the voltage across L2. આવ્યું થોડું થોડુંક આવ્યું. મ્યુચ્યુઅલી કપલ્ડ. ઓકે, મારા नोट्स થી बोलूं सारू. वापस आते हम लोग स्टार्टिंग से. पैरेलल में कंप्यूटिंग कंपाउंड से वो सब ठीक है, सेंटर से आ रहा है. અને એકવાર હું જોઈ લઉં મારા નોટ્સ નું કેવું છે. અરે पहले तो હું મારા નોટ્સ ના ફોટો મૂકીને કરું, પણ હમણાં ફોટો પાડીને શેર કરવામાં વાર લાગશે. देखिए મારી સમજાવવાનો ટ્રાય કરું. હા પણ મારે હજી સ્કેન કરવાની બાકી છે. મેં મારી જૂની છે ને એમાં બધા ફોટોના પેરેલલ ઇન્વર્ટરનો ટોપિક નતો લીધો. હમણાં મારે શું કહે છે? હા હા, કમ્યુટેશન તો છે જ, લોડ કરંટ ના રીતે કમ્યુટેશન થાય છે કન્ટિન્યુઅસ ને એવું બધું. શોર્ટેડ ટાઈમ કોન્સ્ટન્ટ 0 T1 એલવીટી કટ. આઈએ ચાલને ચાલુ કરીએ. ઋષિના નોટ્સમાંથી સમજાવીએ આપણે. બોલ બોલ. હા, એવું કરી દઉં. આમ તો કેટલું નાનો પતાવી નાખ્યું, મને તો મજા જ ના આવી. ના એ તો ના, કઈ વાંધો नहीं, હું समझाओ नहीं ट्राई करूँ 2 मिनट. तो शरारत कंपोनेंट पैरेलल में लोड के तो पैरेलल इन्वर्टर ठीक है, वो सब सिंपल सी कहानी है. पहले इतना समझो, तो ये एल वाला इंडक्टर है ना, ये सिर्फ स्मूथनिंग के लिए है, ये जरा कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ये सिर्फ फिल्टरिंग स्मूथनिंग करेगा. इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना हम लोगों को. जो भी कहानियां होगी वो इस इंडक्टर, इस कैपेसिटर, इन सब की होगी. तो जैसे ही यहाँ से मैंने T1 को चालू कर दिया, ठीक है, तब तक कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा था, क्योंकि T1 T2 दोनों बनते, मेरा कोई क्लोज पाथ नहीं था. T1 जैसे मैंने चालू किया तो मेरा करंट यहाँ से आएगा, ठीक है, और यहाँ पे N2R से जाएगा, N2 पॉजिटिव R नेगेटिव, और उसकी वजह से S पॉजिटिव N नेगेटिव. तुम्हें समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि तुम देखोगे ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इसके पैरेलल में आती है
N2S कैपेसिटर, N2S कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद N2R, वोल्टेज सेम होना चाहिए N2R और N2S कैपेसिटर का, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई N2R का वोल्टेज तो एडीसी है, ठीक है, N2R का वोल्टेज तो एडीसी है प्लस माइनस, तो इसका भी टोटल वोल्टेज ईडीसी होना चाहिए प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे माइनस आ गया, ये तो म्यूचुअल की वजह से प्लस माइनस ईडीसी प्लस माइनस ईडीसी, तो ये प्लस माइनस ईडीसी हो गया, तो इसका उल्टा आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का एडिशन होने के बाद प्लस माइनस ईडीसी वोल्टेज आना चाहिए, तो दिस इज गोइंग टू बी उल्टा -2 ईडीसी, ठीक है, ताकि ये ईडीसी कट के फाइनली, चलो ये प्लस माइनस ईडीसी जैसे प्लस माइनस 2 ईडीसी, तो फाइनल इन दोनों का ऐड करके आएगा प्लस माइनस ईडीसी पैरेलल में, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा प्लस माइनस 2 ईडीसी। ये सर ने पूछा था हम लोग, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होता है, स्टेडी स्टेट पे आता है, स्टेडी स्टेट पे ठीक है। तो ये जो तुम्हारा 2 ईडीसी है वो धीरे धीरे चार्ज होगा, पूरा चार्ज हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट फिर नहीं फ्लो होगा एट स्टेडी स्टेट। तो स्टार्टिंग में पाथ 1 फ्लो होता है, पाथ 1 मतलब इंडक्टर N2R T1, दिस इज पाथ 1, ठीक है। पाथ 2 क्या है, इंडक्टर N2S कैपेसिटर T1, दिस इज पार्ट 2। पाथ 1 में से करंट फ्लो होगा पहले, ठीक है, और जैसे ही मैं T2 ट्रिगर करता हूँ, T2 में ट्रिगर करता हूँ तो T1 इमीडिएटली रिवर्स बायस हो जाता है क्लासिक कम्यूटेशन की तरह। क्यों ऐसा होता है, तो जब मैंने T2 ट्रिगर किया तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव ईडी तो था, ठीक है, तो कैथोड पे माइनस ईडीसी और यहाँ पे -2 ईडीसी, रिवर्स बायस हो गया। हेलो, हेलो, हाँ हाँ खबर पड़े थे भाई, पहले T2 હું ચાલુ કરું ને એટલે સીધો T2 રિવર્સ બાયસ થઈ જાય। હા તો એવું બોલને ગાંડા, કહી દેવાનું। હા હા એ તો ઇન્ડક્ટરમાં S N2 ને N2R નું વોલ્ટેજ દર વખતે સેમ જ રહેશે। આવી ગયું એટલે હો ભાઈ। થાશે ઈ ને કે કેથોડ સાઈડ છે ને ઓછું નેગેટિવ હશે વોલ્ટેજ ને એનોડ સાઈડ વધારે નેગેટિવ વોલ્ટેજ હશે, હા એટલે રિવર્સ બાયસ થઈ જશે, એવું જ છે ને? બરાબર, હા ઓકે હું એ જ કહેતો હતો, એક મિનિટ, હા બસ બરાબર। તો એ હિસાબથી તમે T2 ચાલુ કરો એટલે T1 તમારો કમિટેડ થઈ જાય, ભાઈ T1 કમિટેડ થાય, T2 ના પણ કરંટ ફ્લો કેવી રીતે થાય છે, તો ઇન્ડક્ટર, ठीक है, બે પાથ પાછા N2S T2 એક પાથ, सेकंड पाथ N2R कैपेसिटर T2, वापस N2S इज इन पैरेलल विद N2R कैपेसिटर। ये अब है ना इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पहले कैसी थी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, N2 प्लस R माइनस S प्लस N2 माइनस मतलब टोटल प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आ रहा था, तो पॉजिटिव साइकिल में करंट लोड में ऐसे ही जा रहा था इससे एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या हो गया, अब मैंने T2 चालू कर दिया है तो करंट यहाँ से जाएगा N2 प्लस S माइनस सीधा, और N2 प्लस S माइनस है इसलिए R प्लस N2 माइनस, और ऐसे भी जाएगा। तो फाइनली प्लस माइनस की पोलैरिटी बनती है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस की पोलैरिटी बनती है और करंट IL यहाँ से जाता है और उल्टा वोल्टेज जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज पता चला। और हाँ आइसोलेटेड है क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर यूज किया इसलिए, मतलब ऐसे उस साइड है इसलिए, वहां का करंट और यहाँ का करंट सेम नहीं है, इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पे करंट आ रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज आइसोलेटेड। सो लोड करंट विल नॉट फ्लो टू कम्यूटेटिंग कंपोनेंट, लोड करंट हाई होगा तो भी चलेगा, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट में लो करंट होगा तो भी चलेगा,
इसलिए तो पैरेलल में लगाते हैं। तो इसलिए पैरेलल में लगाते हैं तो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट की हमारे जो पावर रेटिंग है वो कम आएंगे, इसलिए चीप होगा और आउटपुट यहाँ पे कंटिन्यूस होगा यार। अभी तक हमारा आउटपुट डिसकंटिन्यूस था, हम लोग टीएबी पहले तो सेफ्टी के लिए डालना पड़ता था, डीसी शॉर्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग सेफ्टी के लिए टीएबी डालते थे मॉडिफाइड सीरीज जनरेटर में भी, तो दोनों में हम लोग को डिसकंटिन्यूस वेव मिलती थी। यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यूस वेव मिलेगी, क्योंकि जैसे ही T2 चालू करूंगा मेरा T1 कमिटेड हो जाएगा। और वैसे ही हम लोग नीचे यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ में क्या दिया हुआ हम लोगों को, ट्रिगरिंग एंगल दिए हुए और आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है। और ये 2 EDC था, क्योंकि इसका भी EDC था और इसका भी EDC था, तो यहाँ पे 2 EDC वोल्टेज आता है। આકાશ મોડિફાઈડમાં આપણે ટીએબી 0 કરી નાખી તો લોચો આવશે? સેફટી માટે આપણે ઓછું નથી કરતા એમ, લોચો એટલે શોર્ટ સર્કિટ તો નહીં જ થાય, પણ ત્યાં આપણે 0 નથી કરતા, શોર્ટ સર્કિટ નહીં થાય એ ગેરંટી। એટલે કાંઈ એવું સ્પેસિફિક રીઝન કે નથી કરતા? શું કામ? મતલબ શું સેફટી છે ની? 0 શોર્ટ સર્કિટ તો નથી થતું તો? શોર્ટ સર્કિટ નથી થતું, એક જ મિનિટ ક્યાં ગયું? શોર્ટ સર્કિટ નથી થતું, હા પણ શોર્ટ સર્કિટ નથી થતું, પણ એને એટલે T1 ને બંધ થવાનો થોડો ટાઈમ આપી દીધો એમ। હા હા ઓકે હા 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 બરોબર સમજો એ ટાઈમ, બાકી એમ શોર્ટ સર્કિટ તો નહીં જ થાય, પણ T1 ને બંધ થવાનો થોડો ટાઈમ આપી દીધો, અને એ પોતે બંધ તો થઈ જ જશે T1, તેને બી થોડો ટાઈમ આપી દીધો આપણે, બરોબર બરોબર હા સર્કિટ તો બંધ થઈ જાય। તો એ આપણે સરને એકવાર પૂછી દઈશું। તો ધીસ વોઝ પેરેલલ ઇન્વર્ટર, ठीक है। પેરેલલ ઇન્વર્ટરમાં આપણે મજા શું આવી, કન્ટિન્યુઅસ આઉટપુટ મળી ગયું, ठीक है। અને લોડ કરંટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ કમ્યુટેટિંગ કરંટ, કેમ કે આપણે ટ્રાન્સફોર્મર જેવું વાપર્યું છે એટલે ઉપરનો કરંટ અલગ, નીચેનો કરંટ અલગ, નીચેનો કરંટ ઓછો હોય તો કઈ વાંધો નહીં, તો લોઅર રેટિંગ વાપરી શકો તમે, ચીપર સ્મોલ સાઇઝ બરાબર। ઇન્ડક્ટર સાઇઝ ઘટી ગઈ કરંટ રેટિંગ લીધે, કરંટ રેટિંગ કમ્પોનન્ટની સાઇઝ ઘટી ગઈ। અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક વાત સમજો, ઇન્ડક્ટર જે હોય છે ને એ ડિઝાઇન થાય અને કેપેસિટર ડાયરેક્ટલી યુઝ, તો ઇન્ડક્ટર જે હિસાબથી ડિઝાઇન થાય એ હિસાબથી કોસ્ટમાં ચેન્જ આવે, કરંટ વધારે હોય તો એ હિસાબથી વધારે વાઇન્ડિંગ ને એવું બધું કરવું તો કોસ્ટ વધતો જાય, तो करंट कंपेरेटिवली ओछो पड़े आम। तो हमें આપણે हाफ ब्रिज पर जैसे हमारा हुआ सीरीज मॉड्यूल हम आते हैं, पैरेलल हो गया, हाफ ब्रिज पे आते हैं, ठीक है। हाफ ब्रिज विथ रेजिस्टिव लोड, हाफ ब्रिज में વધારે ભાવનાઓની જરૂરત નથી। हाफ ब्रिज क्या होता क्या है भी हाफ ब्रिज, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रेजिस्टिव लोड, ठीक है। सिंपल स्कीमेटिक, इसमें ट्रिगरिंग और कम्यूटेटिंग सर्किट नहीं दिया हुआ है, ट्रिगरिंग तो कभी नहीं दिया, कम्यूटेटिंग में नहीं दिया हुआ है, कम्यूटेटिंग समझ लो कहीं से हुआ है भाई, बट कैसे लगा हुआ है, करंट कहाँ से फ्लो होगा वो सब हम लोग देखेंगे, इधर ऑक्सिलरी कम्यूटेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन यूज होगा, ठीक है। ऑक्सिलरी कब होता है, जब एक एससीआर तुमने स्पेशली तुम्हारे मेन एससीआर को कम्यूटेट करने के लिए लगाया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है, जब 2 एससीआर है, एक जब बंद होगा तो दूसरा खुद से बंद हो जाए, एक चालू होगा तो दूसरा बंद हो जाएगा, दूसरा चालू होगा तो पहला बंद हो जाएगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को ये तो कैपेसिटर ही थे, उन्होंने बैटरी को तोड़ के दिखाया था VS/2 VS/2, ठीक है। बाकी यहाँ पे बैटरी होती है, फिर पैरेलल में एक कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, वो वोल्टेज डिवाइड कर लेते हैं। तो VS/2 सिंपल है, मैंने T1 को चालू किया तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ, ठीक है। और कम्यूटेशन सर्किट नहीं दिया, अज्यूम करो कि तुमने कम्यूटेट कर दिया फिर T2 को चालू कर दिया, तो T2 को चालू करने के बाद तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। और इंडक्टिव नहीं है, रेजिस्टिव है, मतलब आपको सोचे मत कि वो ऐसे लोड उल्टा करंट फ्लो करेगा, कुछ नहीं। तो पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा था ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे जा रहा था और अब उल्टा जा रहा है, तो पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। So this is half bridge inverter, सिंपल ही। T1 triggered, only single current will flow in the circuit, ठीक है। पाथ बता दिया, V/2 T1 लोड V/2, फिर V/2 लोड T2 V/2, T2 is triggered, T1 is turned off, so the current will be low, ठीक है, सिंपल है सब। आउटपुट वोल्टेज VS/2 होगा, सिंपल सी बात है वो तो। यहाँ पे जब ऊपर वाला फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज यही दे रहा है, नीचे वाले को कुछ नहीं, ये कुछ करंट पाथ क्लोज पाथ ही नहीं है, सिर्फ इतना वोल्टेज आ रहा है, तो फाइनल आउटपुट वोल्टेज VS/2 होगा ब्रिज में, ठीक है। हाफ ब्रिज विद इंडक्टिव लोड,
जब इंडक्टिव लोड आता है वहाँ दोस्तों, तो क्या होता है कि इंडक्टर अंदर का चार्ज होगा, फिर उसको डिस्चार्ज होना पड़ेगा, तो उसको डिस्चार्ज होने के लिए पाथ देना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या? जब इंडक्टर नहीं था, सिर्फ रजिस्टर था, तो मैं तो मजे ले रहा था। क्या मजे ले रहा था मैं? कि ऐसा लाया, चलो फटाक करके डायरेक्शन चेंज कर दी। करंट की डायरेक्शन पहले ऐसे थी, एकदम मैंने T1 बंद कर दिया, T2 चालू कर दिया, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो भी गई। इंडक्टर ये नहीं करना देगा, इंडक्टर बोलेगा मैं तो करंट की डायरेक्शन सेम ही रखूंगा। ठीक है, तो वो इंडक्टिव लोड का कहानी है। उसके लिए हम लोग 2 डायोड लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सीधा नीचे इंडक्टर जा रहा है, ऊपर डायोड जा रहा है, ऐसे समझ। ठीक है, तो डायोड क्यों लगाया? वही इंडक्टर को डिस्चार्ज होने के बाद दिया, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इंडक्टर को बेचारे को डिस्चार्ज तो होने दो। तो इंडक्टिव लोड है VS/2 बाकी सब सेम है। T1 ही चालू करूंगा मैं पहले। T1 मैंने चालू किया। ठीक है, इससे करंट फ्लो हुआ इंडक्टर के थ्रू। पाथ वही है, VS/2 T1 इंडक्टर, VS/2 T1 इंडक्टर। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं T1 बंद कर देता हूँ। T1 बंद कर देता हूँ, इंडक्टर जो मेरा है वो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया है। ठीक है, चार्ज। अब क्या होगा? हाँ हाँ, मानस विचार करे। एक मिनट साबुदाना। Polarity of the inductor will be reversed, and for the moment D2 will be forward bias. D2 will be forward bias. D2 અહીંયાથી આવશે બરાબર છે। D2 हाँ सही है दोस्तों, चलो चलो समझ गया मैं समझाऊंगा। VS/2 भाई पहले कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, पहले सब कुछ खुला बुला कुछ नहीं था, क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं ना वो ओपन थी, मतलब मेरे पास क्लोज पाथ नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये डायोड रिवर्स बायस, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये डायोड रिवर्स बायस। तो पहले करंट फ्लो करने के लिए मेरे को जगह नहीं थी। मैंने जैसे ही T1 चालू किया उसको पाथ मिल गया, हाय हाय करंट फ्लो होने लग गया। इंडक्टर में पॉजिटिव वोल्टेज आने लग गया, इससे करके। ठीक है, यहाँ पे करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में। इंडक्टर चार्ज हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। जैसे ही इंडक्टर चार्ज हुआ प्लस माइनस, मैंने फिर थोड़ी देर बाद इसको T1 को कम्यूटेट कर दिया। T1 को कम्यूटेट कर दिया, लेकिन मेरा जो इंडक्टर है वो करंट की डायरेक्शन चेंज होने नहीं देगा। यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन यही रखने के लिए वो क्या करेगा, वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा। वो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव ला देगा। पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, अब वो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव ला के करंट की डायरेक्शन सेम रख के यहाँ से करंट भेजेगा। अब दोस्तों यहाँ से वो करंट भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वो करंट कहाँ से जाएगा, वो D2 के थ्रू जाएगा। D2 के थ्रू कैसे जाएगा? ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द इंडक्टर विल बी रिवर्स्ड एंड D2 विल बी फॉरवर्ड बायस। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम D2, और धीरे धीरे करंट कम होगा। ठीक है, ऐसे ही D2 में से फ्लो होके धीरे धीरे करंट कम हो। फिर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद मैं T2 चालू करूंगा। T2 चालू करूंगा तो वापस ऐसे करंट फ्लो होगा। कम्प्यूटेशन सर्किट नहीं बताड़ी, कोई कम्प्यूटेशन सर्किट है? हाँ, अभी कम्प्यूटेशन सर्किट नहीं बता रहे कोई भी। तो T1 को ऑन किया, फिर D2 के थ्रू फ्लो हुआ और करंट को जीरो किया, इस डायरेक्शन के करंट को जीरो किया। ऐसे ही मैं उल्टा नहीं दे सकता। ठीक है, अब मेरा करंट जो आएगा वो ऐसा आएगा, ऐसा क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज था, इंडक्टर के थ्रू बोलूँ तो ऐसा था, अब ऐसा आएगा। T2 चालू किया, ऐसा फ्लो होने लग गया, आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हो गया। वापस ऐसा फ्लो होने के बाद थोड़ी देर बाद मैं T2 को कम्यूटेट कर दूंगा। ठीक है, इंडक्टर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव से चार्ज हुआ था, लेकिन उसको करंट की डायरेक्शन यही मेंटेन करनी है। वो यहाँ पे पॉजिटिव ला देगा, यहाँ पे नेगेटिव ला देगा, और इससे करंट फ्लो लग जाएगा। समझे क्या? धीरे धीरे करंट कम होगा, वापस मैं T1 चालू करूंगा तो कहानी वही चलती रहेगी। ठीक है, बस फर्क इतना पड़ा कि इंडक्टर की वजह से मेरे को डायोड लगाने पड़े, क्योंकि मुझे इंडक्टर को डिस्चार्ज होने का टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। उसका वेवफॉर्म इसने नहीं बनाया, वेरी गुड, बड़ा अच्छा बंदा है, नहीं बनाया हम भी क्या बोलेंगे, ऐसा ही बट ऐसा होता है, इसके जैसा ही थोड़ा होता है, लेकिन
थोड़ा इसमें जो सेंटर टाइम होगा ना वो थोड़ा T1 का टाइम होगा, उसके बाद D1 का टाइम होगा, ठीक है। पहले थोड़ा T1 का टाइम होगा, फिर उसी डायरेक्शन में D1 का थोड़ा टाइम होगा, फिर वापस यहाँ थोड़ा T1 का टाइम होगा, फिर D1 का होगा, T1 D1 T1 D1 ऐसे। इसका आधा पार्ट D1 का होगा, फिर D1 का होगा, ठीक है। और जो D1 का टाइम है उतने टाइम बाद ही मैं दूसरा थेरिस्टर चालू करूंगा, जब मेरा करंट कम हो जाए तब। तो हाफ ब्रिज इंडक्टर टाइप भी हो गया। और यार अभी इक्वेशन तुम लोग सब देख लेना थोड़ी थोड़ी, वो पीक का होता है, RMS का होता है, इंस्टेंटेनियस, ये सब इक्वेशन देख लेना भाई, P = I²R। फिर हाँ ये सब इक्वेशन है हार्मोनिक्स की, ठीक है। ये भी वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं अच्छे से, मतलब मजा आएगा उनको। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है, दैट इज वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक, HFN जो होता है, HF3 है तो वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक अपॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब 1, ठीक है। तो ये एक बार मैं देख लेता हूँ, ये दिखा देता हूँ तुम लोगों की जनरली क्या होता है। हाँ ऐसा कुछ होता है, HF V3 V1 और n, ये रहा n/2vs/n/r²। तो n के जगह पे तुम 135 ऐसे डालते जाओ तो I इंस्टेंटेनियस मिलेगा। वैसे तुम लोग को v की इक्वेशन ऊपर दी होगी, v इंस्टेंटेनियस, ठीक है। यहाँ पे n में तो 135 ऐसे डालते जाओ, वो मिल जाएगा। तो अगर HF3 है तो 3 डाल के ऊपर, फिर 1 डाल के नीचे, बस ये इक्वेशन देख लेना भाई। डिस्टॉर्शन फैक्टर की इक्वेशन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की इक्वेशन पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर सॉल्व करने को बोल देंगे। हाफ ब्रिज इन्वर्टर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 10 મિનિટ જ છે એવું, જોઈએ જેવું થાય નહીં, 10 મિનિટ. ઓકે, મને હા. લાગ્યું તું કે તું મીટિંગ ક્લોઝ કરે 10 મિનિટમાં હા એ જ મને એ જ થયું. યાર। તમે હોસ્ટ, તમે મોટા માણસો યાર, કઈ વાંધો નહીં। ચલો ચલો ચલો, ફોકસ। આમે મોટો જ છે ને. હા નો જોક્સ, આપણે સિરિયસ બની। ચલો ચલો, હાફ બ્રિજ ઇન્વર્ટર VS = 48 વોલ્ટ, લોડ રેઝિસ્ટન્સ 2.4 ઓહ્મ, બરાબર। ફાઇન્ડ આઉટ આઉટપુટ RMS। બરાબર, ઇક્વેશન નાખવાની છે, સમજી લો મારી વાત, બરાબર। ઇક્વેશન ઉપર આપેલી છે, એમાં બધું નાખી દેવાનું, વધારે વિચાર નહીં કરવાનો। તો એમને એક્સપ્લેનેશન આપ્યું હતું, બરાબર। આગળના કોકો ક્વેશ્ચનમાં મેં લખ્યું છે કે નહીં, હું એ બધા અલગથી કરાવડે। હા મેં પાછળ લખ્યું છે, હું વચ્ચે ટાઈમ મળી હતી। આપણે એક વાર છે ને ફૂલ ब्रिज इन्वर्टर कवर कर लीजिए। तो दोस्तों क्या है फुल ब्रिज इन्वर्टर, क्या होता क्या है फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो फुल ब्रिज इन्वर्टर में हमारा जो आउटपुट पावर है वो बढ़ जाता है। पहले तो तुम सिंपल देखो यार, कंपोनेंट ही बढ़ गया पहले तो, ठीक है। ऊपर अगर देखो तो 2 थायरिस्टर, डायोड खत्म, हाफ ब्रिज इन्वर्टर खत्म। इंडक्टिव के लिए डायोड, रेजिस्टिव लगाना तो डायोड भी नहीं, ठीक है। ये इंडक्टिव के लिए एक समझ लो, इंडक्टिव रेजिस्टेंस तो होगा ही लोड का। तो यहाँ पे हमारे 4 थायरिस्टर, 4 डायोड, सही है। तो क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। और हाँ हमेशा के लिए, हमेशा की तरह इंडक्टर की डायरेक्शन नीचे होगी, ठीक है, डायोड की डायरेक्शन उल्टी होगी। क्यों उल्टी होती है भाई, क्योंकि T1 होता है ना, उसका जो डायरेक्शन होता है फ्लो होने का, मतलब जब मेरा पॉजिटिव साइकिल शुरू हुआ, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में जब वो T1 के थ्रू करंट फ्लो हो रहा होगा ना, तो तब जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, और लोड के क्रॉस डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन सर्किट में थायरिस्टर अगर नीचे साइड है तो डायोड ऊपर की साइड के थ्रू जाएगा। समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है। VS से आया पहले, ठीक है, T1 दिख रहा है, मैं T1 और T2 को चालू करूंगा। हैंडराइटिंग इसकी तो समझ में आई होगी, लेफ्ट ऊपर T1 है और राइट नीचे T2 है, राइट साइड पे, ठीक है। तो T1 के थ्रू जाएगा, फिर लोड, फिर T2, फिर वापस VS T1 लोड T2 वापस, ठीक है। T1 T2 मैंने चालू कर दिया था। अब मैंने भाई T1 T2 कम्यूटेट कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल ऐसे करंट, अरे यार कर्सर से दिखाना है, मैं तो पेन से कर रहा था। तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। T1 T2 मैंने कम्यूटेट कर दिया, T1 T2 मैंने कम्यूटेट कर दिया तो क्या हुआ क्या भाई, T1 T2 कम्यूटेट कर दिया तो इंडक्टर तो चार्ज हो गया ना यार प्लस माइनस से, वो तो बोलेगा मैं तो करंट की डायरेक्शन नहीं रखूंगा। तो तुम सीधा T4 और T3 को चालू नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे प्लस माइनस था, तो अब इधर से करंट भेजना है तो वो इंडक्टर प्लस माइनस कर देगा, उल्टी पोलैरिटी ले लेगा और करंट यहाँ से जाने देगा। तो करंट अब यहाँ से जाने देगा तो करंट हमारा कहाँ से जाएगा, तो अब दोस्तों हमारा करंट जाएगा D3 से, ठीक है, D3 से जाएगा और D4 से जाएगा।
समझ रहे हो, ऐसे ऐसे जाएगा और धीरे धीरे वही इंडक्टर का करंट कम होगा और जैसे ही वो 0 हो जाता है हम लोग T3 और T4 को चालू कर देंगे। T3 और T4 को चालू करेंगे तो बैटरी के थ्रू T3 के थ्रू ऐसे करके उल्टा करंट का डायरेक्शन जाएगा इधर से। वोल्टेज भी ऐसा का जो इधर आया था, इधर इंडक्टर था, फिर इधर डायोड था, ऐसे में इमेजिन करो थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे डायोड था, अरे हाँ ठीक है, अभी ड्राइंग का मुझे ऑप्शन ढूंढने नहीं जाना है। तो ऐसे इधर से T1 था, फिर यहाँ पे T1 T2 था, फिर यहाँ पे D3 D4 था, ठीक है। और अब हमारा है T3 T4 का जमाना आ गया, T3 T4 ऐसे नीचे से, तो T3 T4 वापस इंडक्टर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव से चार्ज हो गया। अब वापस मैंने T3 T4 को कम्यूटेट कर दिया। तो अब इंडक्टर बोलेगा नहीं मैं करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज होने दूंगा, यहाँ से ही करंट जाएगा, तो इंडक्टर पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे जाओ, वो उल्टी पोलैरिटी हो जाएगी, इंडक्टर का पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, करंट यहाँ से आएगा, करंट यहाँ से ही आएगा, ठीक है। अब करंट यहाँ से आ रहा है तो उसके डायरेक्ट कहाँ से जाएगा वो, मतलब रास्ता कौन देगा, तो D1 देगा और D2 देगा भाई। D1 के थ्रू जाएगा, D2 के थ्रू जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बैटरी उसको अपोज कर रही है भाई, धीरे धीरे करके इंडक्टर की लग जाएगी, धीरे धीरे करके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इंडक्टर का जो करंट था वो अपोजिंग रेटिंग वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोगों ने पाथ दिया डायोड के थ्रू, बस वो खत्म हुआ, फिर T1 T2 चालू कर दो। तो यही है भाई फुल ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है, और कुछ नहीं है कहानी ज्यादा। बट समझने वाली बात इतनी है कि जब मैं हाफ ब्रिज की बात कर रहा था, ठीक है, हाफ ब्रिज में कहानी कैसी होती थी, कहाँ गई कहानी भाई, जाने फटाफट नहीं जवानू गुस्से सही जाए बता। हाँ, हाफ ब्रिज नीचे वाला देखते हैं। हाफ ब्रिज, ठीक है, हाफ ब्रिज में क्या होता है कि ये V/2 सप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो मेरे लोड क्रॉस जो वोल्टेज आता है ना वो V/2 ही आता है यार, समझ रहे हो तुम, हाफ क्यों कहते हैं समझ में आया। बाकी वर्किंग तो सिमिलर ही है, बस इसको डबल कर दिया इतने पार्ट को। तो पहले V/2 ही वोल्टेज आता था, पॉजिटिव साइकिल हो या फिर नेगेटिव साइकिल हो, मतलब पॉजिटिव साइकिल हो या फिर नेगेटिव साइकिल, इधर पॉजिटिव इधर वोल्टेज V आता है। ब्रिज में आउटपुट वोल्टेज डबल हो गया पूरा V, ऐसे या फिर ऐसे, बस यही है, ठीक है। अब बेसिक एक तो हम लोग छोटी छोटी बातें समझेंगे कि मेरा जो पावर आउटपुट होगा वो 4 टाइम बढ़ जाता है, बिकॉज पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बार वोल्टेज आउटपुट डबल, तो पावर तो स्क्वायर 4 टाइम, ठीक है। तो सारे ड्रॉप बॉप कंसिडर कर, हमारे हाफ ब्रिज में जो आउटपुट था ना दैट वाज 0 V आउटपुट इज इक्वल टू 0.45 सप्लाई था, इसमें 0.9 हो जाता है, ठीक है, पावर आउटपुट। अब थोड़ा सा एक जो क्वेश्चन दिया था ना उसके सर ने थोड़ा सॉल्यूशन भी करवाया था, इसने शायद दूसरी पीपीटी में देखा होगा, हम लोग एक बार स्टॉप कर लेते हैं। तरररा, 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 तरररा। બરાબર છે ને જાય છે ને બહુ બધું એમ વધારે સ્લો કે એવું કઈ તો નથી ને, કહી દેજો। બધા શાંત થઈ ગયા ભાઈ, સુઈ ગયા કે શું? आ रही हो। વેરી ગુડ વેરી ગુડ ભાઈ, કહેજો કઈ ભૂલ થાય તો। મોડિફાઈડ માં હા તે ટીએબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મોડિફાઈડ પૂછી છે સર ને પણ, હા આઈ એમ પ્રેઝેન્ટિંગ, વેરી ગુડ। ઘટી ગઈ પબ્લિક હે तो अच्छे घना है अपनी माटे। ये रहे सवाल दोस्तों, ठीक है। सिंगल हाफ ब्रिज इन्वर्टर, रेजिस्टिव लोड, डीसी इनपुट वोल्टेज इज 50 वोल्ट। ए यार तो क्वेश्चंस में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें देखनी, भाई इक्वेशंस भी देखनी है हम लोगों को कि जब हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता है ना तो मेरा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट वोल्टेज होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे पूरा आउटपुट वोल्टेज होता है Vs/2 हाफ ब्रिज में। पूरा आउटपुट वोल्टेज लिख लो कहीं पे चाहिए हो तो, मैं भी लिख लेता हूँ। ये हमारे क्वेश्चंस में हम लोग को हमेशा काम आएगा, ठीक है, जब भी हम लोग क्वेश्चंस करने बैठेंगे। ऐसे ये हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज इन्वर्टर के ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे ना जहाँ पे हम लोग को पूछ रहा होगा कि आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, आरएमएस वोल्टेज कितना आएगा, पावर कितना आएगा, एवरेज करंट कितना आएगा, हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लिख लो एक बार, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस पे जो आउटपुट वोल्टेज होता है लिख लो कहीं पे, मतलब आरएमएस वोल्टेज एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.45 ऑफ Vs, किसमें, हाफ ब्रिज में। और अगर फुल ब्रिज में बात करूं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे आरएमएस वोल्टेज है 0.9,
और अगर मैं आउटपुट वोल्टेज आरएमएस पे बोलूँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे नहीं, टोटल आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, उसमें दूसरी फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएंगी, तो दैट इज एग्जैक्टली Vs बाई 2, 0.5 Vs इन हाफ ब्रिज, ठीक है, 0.5 Vs सप्लाई का 0.5। और फुल ब्रिज में बोलूँ तो आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, उसका आरएमएस मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज पे इज टोटल Vs, जितना सप्लाई था उतना आउटपुट में मिल जाता है, ठीक है। फिर क्या है, एवरेज एंड पीक करंट ऑफ ईच थायरिस्टर, वो कैसे आता है, तो दैट इज ईडीसी बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल आउटपुट वोल्टेज जितना है उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। पांडुरंगा। पावर तो सबको आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज का स्क्वायर बाय आर। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हाफ ब्रिज में Vs बाई 2, फुल ब्रिज में Vs, ठीक है, पावर समझ में आ जाएगा। आरएमएस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ जाएगा, 0.5 Vs लेने का आउट एट दिस हाफ ब्रिज और 0.98 फुल ब्रिज, एंड दैट इज √2 बाय पाई, वो तुम लोग को वैसे याद रखना तो रख सकते हो। आई एवरेज इज इक्वल टू ईडीसी बाय 4R, ठीक है। આ મને યાદ નથી ભાઈ, આ એવરેજ અને પીઆઈ યાદ આવે એટલે હું તમને પછી શું છે, मैक मरे इन्वर्टर, ठीक है। क्या है भाई ये मैक मरे इन्वर्टर, क्या होता है? मैक मरे इन्वर्टर में ना ऑक्सिलरी कम्यूटेशन होता है। ऑक्सिलरी कम्यूटेशन क्या भाई, मतलब जो मेरा मेन थायरिस्टर जो भी चल रहा है उसको कम्यूटेट करने के लिए मैं एक्स्ट्रा थायरिस्टर लगाता हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी कम्यूटेशन। सर्किट बड़ी लग रही है लेकिन आराम से समझ सकते हैं हम लोग। पहले इंटरनल तो उन लोगों को दिख रहा है ना, मतलब आजू बाजू का कम्यूटेशन अगर उखाड़ोगे ना, इतने की ही अगर बात करोगे, इतना सा ये है ना, ये कुछ नहीं है यार, ये फुल ब्रिज इन्वर्टर, समझ रहे हो तुम, ये फुल ब्रिज इन्वर्टर इतना सा डीडीसी। अब ये सिर्फ कम्प्यूटेशन कंपोनेंट लगाया है तो उसने मैकमरे कर दिया। देवांग पूछा था कम्प्यूटेशन कैसे होगा, तो ऑक्सिलरी से ये लोग कर रहे हैं मैकमरे, तो ठीक है, कैसे हो रहा है शांति से एक बार देखते हैं हम लोग। पहले तो भाई ये TA1 और नाम भी वैसे ही दिए, ऑक्सिलरी 1, ऑक्सिलरी 4, ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ठीक है, फुल ब्रिज का वर्किंग हम लोग को पता था, तो भी एक बार देखते हैं। तो पहले ये सब बंद है, ऑक्सिलरी वाले बंद है, T1 चालू किया और T2 चालू किया। T1 T2 चालू किया, एडीसी वोल्टेज यहाँ से आया, लोड में से गया, T से गया, ठीक है, अंदर एडीसी बैटरी में। जैसे ही मैंने T1 और तो कम्यूटेट करना है, ठीक है, मुझे कम्यूटेट करना है। उससे पहले कैसा था, कम्यूटेट करने के पहले की क्या कहानियाँ थी, ठीक है, और वो सब तो है भाई, सारे कम्यूटेशन कंपोनेंट सेम है, ठीक है। ये कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, ये इंडक्टर की वैल्यू सेम है। लोड करंट रिमेन्स, हाँ ये समझने वाले याद रखो तुम कि लोड करंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल कम्यूटेटिंग, दैट मींस लोड करंट विल हैव डिफरेंट पाथ। हाँ, तो वही बात है कि मेरा जो लोड करंट है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि तुम लोग कोई भी कहीं पे भी जाओ, मोटर, ठीक है, मोटर होगी इंडस्ट्री में, तो आर्मेचर करंट कांस्टेंट ही गिनते हैं, कहीं भी जाओ, ठीक है। आउटपुट करंट इज कांस्टेंट, तो आउटपुट करंट अगर कांस्टेंट है तो इतना समझो तुम कि जब 1 और T2 चल रहा है तो ठीक है भाई, करंट कांस्टेंट। जब मैंने T1 T2 कम्यूटेट किया उसके बाद भी करंट कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब T1 T2 जब कम्युनिकेट हो जाए ना तो उसको एक पाथ मिलना चाहिए करंट जाने का, ठीक है। वो कैसे मिलेगा वो हमको देखना है। पहले T1 लोड T2, तो तब यहाँ पे क्या कंडीशन थी, ठीक है। तो तुम्हारा जो कैपेसिटर है ना वो पहले से इसी वोल्टेज से चार्ज, ठीक है, इसी वोल्टेज से चार्ज। मैंने T1 और T2 को ट्रिगर कर दिया। अब कैपेसिटर मेरा इसी वोल्टेज से चार्ज है, T1 और T2 को ट्रिगर कर दिया, लेकिन कैपेसिटर के बाद डिस्चार्ज होने का पाथ है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो D1 है ना ये रिवर्स बायस ऊपर एडीसी, ठीक है, और नीचे अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट मानूं तो मैं 0 है, मतलब ये रिवर्स बायस है, इसका जो भी ऑन स्टेट ड्रॉप होगा उसकी वजह से रिवर्स बायस है। तो कैपेसिटर यहाँ से तो नहीं जा सकता, यहाँ से भी नहीं जा सकता, ठीक है। कैपेसिटर पीछे भी ये क्लोज
ओपन है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक, अब होता क्या है, कम्यूटेट कैसे करते हैं हम लोग? तो टी1 को चालू करेंगे कम्यूटेट करने के लिए। ऑक्सीलरी कम्यूटेशन काम ही वो है कि मैं इस थायरिस्टर को चालू करूंगा तो ये थायरिस्टर बंद हो जाएगा। तो मैंने इस थायरिस्टर को चालू कर दिया। जैसे ही मैंने इस थायरिस्टर को चालू किया तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज डिस्चार्ज होने के लिए उसको पास मिल गया। यहाँ से ऐसे डिस्चार्ज हो सकता है। मैं TA1 भी चालू करूंगा और TA2 भी चालू करूंगा। ठीक है, तो ऐसे करंट फ्लो होगा बाद में, समझ रहे हो? EDC TA1 L1 C1 लोड C2 L2 TA2 EDC। तो करंट तुम्हारा लोड करंट कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, लोड करंट तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा, उसको पाथ ये वाला मिल जाएगा। एक बार मैं मेरी नोटबुक में से पढ़ता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लोड करंट स्टार्ट फ्लोइंग ट्रांजिएंट वोल्टेज स्टेडी स्टेट ऑफ वोल्टेज ऑफ लोड इंटीग्रल इक्वल टू EDC। हाँ, सर्किट ऊपर है। तो मैंने TA1 चालू किया। ठीक है, આ TA1 કેપેસિટરની પોલારિટી બતાવજો ને એકવાર અહીંયા EC હોય ચાર્જ છે તે પહેલા. હા, અહીંયા પોઝિટિવ અહીંયા નેગેટિવ અને અહીંયા પોઝિટિવ અહીંયા નેગેટિવ। इनिशियली અહીંયા પોઝિટિવ અહીંયા નેગેટિવ, અહીંયા પોઝિટિવ અહીંયા નેગેटिव, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव इनिशियल। ठीक है, तो अजम्पशन नंबर 1 इज कि कैपेसिटर के अक्रॉस एसी वोल्टेज पहले से स्टोर्ड। ठीक है, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस। फिर मैंने T1 T2 को ट्रिगर किया, लोड करंट फ्लो होने लगा, ट्रांजिएंट फेज कंप्लीट हो गया, मतलब लोड करंट स्टेडी स्टेट पे आ गया। ठीक है, स्टेडी स्टेट ऑपरेट हो गया। EL अक्रॉस लोड, लोड के अक्रॉस, ये तो लोड है हमारा। ठीक है, यहाँ पे EL वोल्टेज होगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट पे इनिशियली तो धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। तो ऐसे आ रहा था, तो इधर EL EDC वोल्टेज होगा, इधर प्लस इधर माइनस, दिस विल बी EDC वोल्टेज स्टेडी स्टेट। तब जाके मैं और कैपेसिटर वोल्टेज EC उसको डिस्चार्ज करने का कोई पाथ मिला नहीं। तो जैसे ही मैं TA1 को चालू करूंगा, ठीक है, हाँ, TA1 और TA2 को चालू करूंगा तो क्या होगा? तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है, ये नोड पे ध्यान देना है अब क्या हो रहा है। ठीक है, इस नोड पे। तो अब T1 के जो एनोड है उस पे EDC वोल्टेज है, क्लियर। लेकिन T1 का जो कैथोड है, ठीक है, दैट हैज अ वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि ऑफ EDC, ये EDC वोल्टेज मतलब ये EC वोल्टेज प्लस EDC वोल्टेज, तो T1 के कैथोड पे वोल्टेज एनोड से ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होता है, यहाँ पे है माइनस EDC, यहाँ पे माइनस EDC और माइनस EC, इसका माइनस EC भी। ठीक है, तो ये भी रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स बायस, T1 और T2 कमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, और जितना टाइम उतने तक करंट यहाँ से, थोड़ी देर के लिए करंट यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, फिर करंट से यहाँ से आएगा पूरा, फिर करंट इसका ड्रेन हो गया, उसके बाद T3 और T1 ऑन होगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर T3 और T1 को ऑफ करने के लिए मैं TA3 और TA4 ऑन करूंगा, फिर उसका करंट ऐसे जाएगा। ओके, इसकी गलतियां क्या है? और ये मोड्स है, इनिशियली T1 T2 को ट्रिगर किया वो पहला। और हाँ वो तो ठीक है, स्विचेस कितनी है वो सब तुम देख सकते हो। स्विचेस पूछा ना तो डायोड भी कंसीडर करना है। डायोड इज अ यूनिडायरेक्शन स्विच, नॉन कंट्रोल स्विच। कंट्रोल स्विच पूछा तो डायोड नहीं कंसीडर करना। कंट्रोल स्विच पूछा तो 8 रजिस्टर, स्विच पूछा तो 8 + 4 12 स्विच, डायोड भी गिनो। ठीक है, हेलो, कोई ना कोई पूछू जाए, माइक डिस्कनेक्ट करो।
પછી શું છે? હા બધું છે. ઠીક है ठीक है ठीक है थायरिस्टर करंट બોલો શું? હા સામા એટલે અચાનક શું થયું ભાઈ તને? હા મારી મને લાગ્યું કે યાર હું સેટિસ્ફાઈ નથી કરી શકું. મને લાગ્યું કે હું કોઈ ખોટું બોલું છું એટલે હું ઊભો રહી ગયો હતો. ઓકે હવે મને થોડું ક્લેરિટી વધી એટલે હું હવે પાછો લાઈન પર આવી ગયો. ચાલો થોડી મજા આવશે. ચલો શું? હા હા હવે હવે ખબર પડી મને. तो શું થાય છે? यस मजा आएगी હવે याद आया मुझे भाई. इतना याद रखो लोड करंट कांस्टेंट. मोटर जो होती है हमारी लोड वाली उसका आर्मेचर करंट कांस्टेंट होता है, लोड करंट कांस्टेंट है. तो लोड करंट कांस्टेंट है तो किरचॉफ लॉ मैं यहाँ पे लगाऊंगा इस नोड पे जहाँ पे T1 से करंट आ रहा है और IC से करंट आ रहा है. ठीक है जब मैंने TA1 चालू किया ना तो क्या होता है यहाँ से भी करंट आ रहा है और यहाँ से भी करंट आ रहा है. तो पहले T1 T2 के थ्रू जा रहा था और मैंने TA1 चालू कर दिया तो अब करंट यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है. तो एक तो IC का करंट आ रहा होगा कैपेसिटर करंट जो मैं बोलूंगा और यहाँ पे IT करंट आ रहा होगा और दोनों का टोटल तो भाई इंडक्टर करंट ही होगा. तो पहले कैपेसिटर को कोई पाथ नहीं मिला था, TA1 बंद था, तो एट द टाइम IT इज इक्वल टू IL था, थायरिस्टर करंट इज इक्वल टू इंडक्टर करंट था. लेकिन अब मैंने ये पाथ भी खोल दिया TA1 को चालू करके तो अब क्या होगा? कैपेसिटर करंट प्लस थायरिस्टर करंट इज इक्वल टू इंडक्टर करंट होगा. इंडक्टर करंट मतलब लोड करंट तो कांस्टेंट ही है. ठीक है अब लोड करंट कांस्टेंट है और मेरा कैपेसिटर करंट बढ़ रहा है क्योंकि कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट बढ़ेगा. कैपेसिटर का वोल्टेज घटेगा करंट बढ़ेगा. तो IC दिस IC हियर इज इंक्रीजिंग देन IT हैज टू डिक्रीज बिकॉज IL इज कांस्टेंट. IL इज इक्वल टू IT प्लस IC और IC अगर बढ़ रहा है तो IT घटेगा धीरे धीरे एनोड करंट की लेवल से नीचे जाएगा और ये कन्म्यूटेट हो जाएगा. आप समझ में आया कम्यूटेट क्यों हो रहा है? मेरे को तो समझ में आया एटलीस्ट. और फिर फाइनली करंट ऐसे ही फ्लो होगा. फाइनली ऐसा होगा IC इज इक्वल टू IL. IT 0, T1 इज कम्यूटेटेड, T2 इज कम्यूटेटेड. जो यहाँ पे हुआ वैसा ही फिर यहाँ पे भी होता है कि IL इज इक्वल टू IC प्लस IT मतलब IC2 प्लस IT2. बट बात यहाँ पे यही है ये भी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है IC2 तो बढ़ने ही वाला है तो IT2 को तो कम होना पड़ेगा. धीरे धीरे IT2 बहुत कम हो जाता है T2 कम्यूटेट हो जाता है T2 कम्यूटेट हो जाता है. ठीक है और इसमें ऐसा होगा फिर इधर से करंट फ्लो होगा. फिर क्या होता है? ओके अब बात है कि D1 विल बी फॉरवर्ड बायस. डायोड की तो बात ही नहीं हुई. डायोड की बात करते आई से करंट फ्लो हो रहा था. जैसे ही T1 के क्रॉस वोल्टेज मतलब T1 के क्रॉस एनोड करंट जो है वो बहुत कम हो गया. T1 कम्यूटेट हो गया, T2 कम्यूटेट हो गया. तो अब तुम देख रहे हो कि D1 फॉरवर्ड बायस हो सकता है. ठीक है क्योंकि अब मेरा वोल्टेज ऐसे जा रहा है. ठीक है तो कैपेसिटर के क्रॉस की वो वोल्टेज है तो ये पूरा डायोड के पैरेलल है और D1 चालू होता है. D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है. क्यों समझ में आ रहा है? D1 इज पैरेलल टू TA1 LEC. तो ये वोल्टेज पॉजिटिव होता है और डायोड के क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज आता है. एट दिस पॉइंट वोल्टेज इज हायर. तो डायोड फॉरवर्ड बायस और थोड़ा करंट ऐसे भी जाने लगता है. आई से इस लूप में भी करंट जाने लगता है कैपेसिटर के थ्रू और ऐसे तो जाहिर है. ठीक है ये तो है ही. थोड़ा इधर से भी जा रहा है. वापस यही बात आएगी कि यहाँ पे IL है. ठीक है यहाँ से 0 आ रहा है अब यहाँ पे IL है. ठीक है तो थोड़ा डायोड में जा रहा है और ऐसे ऐसे करंट जा रहा है.
और हम लोग देखेंगे कि इंडक्टर कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज कैसे होता है। तो हमारा ईसी का प्लस यहाँ पे था, नेगेटिव यहाँ पे था, ठीक है। तो मेरा पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर मेरा यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस से चार्ज हो जाएगा। और करंट का फ्लो यही है, वो कांस्टेंट रखने के लिए पोलैरिटी चेंज कर ईसी को प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे से उल्टा चार्ज कर देगा। उल्टा चार्ज करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन करंट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो करंट है वो मेरा डिक्रीज होगा और ये डायोड भी मेरा रिवर्स बायस होगा। मतलब यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा और TA1 खुद ही बंद हो जाएगा, TA1 भी बंद हो जाएगा, TA4 भी तो बंद हो जाएगा। क्यों? जैसे हम लोग यहाँ पे सीरीज इन्वर्टर में बंद होता था ना, वैसे ही कैपेसिटर मेरा यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव से चार्ज था, वो डिस्चार्ज हुआ, इंडक्टर को पॉजिटिव नेगेटिव से चार्ज किया, फिर इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हुई, फिर कैपेसिटर यहाँ पे प्लस माइनस से चार्ज हुआ, तो कैपेसिटर की पोलैरिटी उल्टी है, करंट यहाँ पे जा रहा है। वो फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा और करंट धीरे धीरे रिड्यूस होकर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये TA1 बंद, TA2 बंद, फिर तुम T3 और T4 चालू करो, फिर वो करो, फिर T3 T4 चालू करो, फिर उसको कम्यूटेट करने के लिए T3 TA3 और TA4, फिर उसका भी थोड़ा करंट डायोड के थ्रू जाते जाते इस लूप में होते होते कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके उल्टा चार्ज करके TA3 और TA4 भी कमिटेड हो जाएगा। दिस इज मैकमरे इन्वर्टर। और कुछ मॉडिफाइड मैकमरे इन्वर्टर नाम की भी चीज़ है, वो अभी हम लोग नहीं करेंगे। और कुछ ये क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें भी इक्वेशन जो थोड़ी बहुत इसने भी दी है, नहीं तो मैं दूंगा। दिस वॉज इट। फीडबैक दो थोड़ा यार। બધા અનમ્યુટ કરી દો કે સુઈ ગયા છો? હેલો હેલો, કેવું લાગ્યું મહાભારત? બેસ્ટ નથી, બેસ્ટ નતું પણ એમ બરાબર. એટલે સમજ પડી ને એવું પતી ગયો. હવે તો મારે બી જોવા પડશે, આટલું આવડતું. હેલો, વેરી ગુડ. ક્યાં જતો રહ્યો તો? હતું કોણ? હા સારું હતું ભાવિકા. તો બોલ ને ભાવિકા, उसमें क्या है? હા ઓકે ઓકે, આપણે ક્લોઝ કરીએ મીટિંગ. ઓલ ધ બેસ્ટ.